Perfect. So, good morning once again. I would like to welcome you to the very first webinar demo session of CloudWorld DevOps batch. So, before I proceed, right, let me make a couple of announcements or broadcasting the information. Meanwhile, whoever is not speaking, can you please go on mute, guys? Oh, Marathi किंवा हिंदी सगळं चालतात मला. We'll come to that. No issues. See, there are two things. The session is for you guys, right? And I am not that kind of trainer who will not allow the participants to unmute and ask their queries. So it won't be a one-way communication from my end. I would like you guys to speak as well because this is your platform, this is your forum. Make a full utilization of that, and you have full rights to stop me and ask me whenever you feel like or whenever you have any query, right? So let me start with a couple of quick questions before we proceed towards the curriculum and other things. So who all from you guys are here to learn DevOps? You can raise hand, you can unmute and answer, you can put it in chat. Let's understand, like, let's see how many of you are here to learn DevOps. Okay, Mandar is amongst the one. Perfect. Who else? Ultimately, it might sound, a silly question, but let me give you a glimpse of why I am asking this question. Lena is one of them. Sandeep is one of them. Very good. So only these 3, 4 folks are here to learn DevOps. So Saurabh, you will be comfortable in Hindi. Is that fine? I'll be like getting it in Hindi and Marathi both, or Hindi and English both. So if that is fine, I can initiate. Perfect. Let me take a couple of minutes, then we can proceed in Hindi. So everybody is comfortable in Hindi, English both. Is that Yes. fine? Yes, sir. Perfect. Perfect. तो Yes, sir. करते हैं हिंदी में भी करते हैं, no issues, that is fine. So see, the idea and motive behind asking this question is, while I was in college, right? Okay, let me again ask you a different question. Now I asked who all are here to who all are here to learn DevOps. Let me tell you, who all are here to take job. Job के लिए कौन कौन आया है? And who all are here to only learn DevOps. परफेक्ट. देखो जॉब की बात आई तो फटाफट रिप्लाई आने लगे ना. अंकिता, कृतिका. Perfect. Saurabh is here for taking a job. That is good. See, the reason behind asking this question is, while I was in college, right, back in 2015, 2014, Java wasn't quite boom. एक programming language थी IT में, Java. It wasn't quite boom. Everybody in the CS field, probably in 11, 12, they used to teach us Java, and colleges में they used to teach us Java. Do you even hear about Java openings now? मतलब नॉट दैट मच, बहुत रेयरली मिलती है, बट डू यू इवन ऑब्जर्व या किसी से सुना है तुम लोगों ने कि जावा की पोजीशन एक खुली है, जावा डेवलपर की ओपनिंग आई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई बंदा लगा है? वेरी रेयर, राइट अंकिता? करेक्ट. नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल. इन लॉकडाउन, राइट, देयर वर अ हेल लॉट ऑफ जॉब्स ऑफ बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब ना एक काइंड ऑफ इट वाज अ सुनामी फॉर अ बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. जिधर देखो उधर बिग डेटा के जॉब्स. इवन आई स्विच्ड into big data during the lockdown period, but now the big data administrator jobs are obsolete from the market. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब का कल्चर और जॉब की ओपनिंग्स है ना, that depends on the technology, that depends on the demand and supply. Now let me tell you why. Technology, right, competency, it is just one of the factor for your career to grow. Technologies और ये जो tools है ना, this will come and go. Your ultimate aim should be to get job. Today it is DevOps. 5 years, 3 years down the line, it could be any tool, any technology in the market, but you should be able to learn that tool. You should be able to survive and take job in that particular tool. जैसे अभी AI चल रहा है, right? अभी ML ops चल रहा है. DevOps since the start, when it launched, right, 2008, 2010, it is still वो time से boom में. Why it is in boom? How it is in boom? Challenge me, I will show you practically. Data oriented proof, I'll show you. But
Did you understand the difference between these two questions? See, competency is just one thing. At that time, people used to learn Java. आज जावा डेवलपर की कुछ वैल्यू है क्या? आज बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स के कुछ जॉब है क्या मार्केट में? नहीं. So choose wisely, choose your career wisely. Always have the answer to that why question ki why you are here, why you are in this demo, and what you will be able to learn and understand from this demo. This would not be a just मतलब वो एक अपना लेगेसी ट्रेडिशनल जो कल्चर होता है ना कि कॉलेजेस में टीचर आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है एंड देन जस्ट ही इज गोइंग ना बच्चों की करियर और फ्यूचर का कुछ उसमें लेना देना है. ही इज जस्ट डूइंग हिज bloody job and going away, right? It won't be like that. We will give you all the production based related training, how things work in IT, process oriented knowledge, mocks, and everything I'll try to cover. Before that, let me share my screen. And whoever is working here, do we have anyone who is already working here? Any working individual? Yes. Yes. But yeah, Yes. that sound good. So we have multiple people who are already working, right? But yeah. So organization की hierarchy पता है क्या guys? Do you know the hierarchy of the organization? मतलब जो कंपनी के बोर्ड्स में से होते हैं, like the people who runs the company. How's the hierarchy? CEO. Let me. Okay, बढ़िया है. उसको लिख लेते हैं यहाँ पे to understand. तो मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा. तो थोड़ा सा ना आज अलग सीखने मिलेगा, वो माइंडसेट से बैठो. और तुम लोगों को यहाँ पे एनरोलमेंट क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू लर्न डेवऑप्स, डेवऑप्स में मेरे को जॉब मिलेगी ही नहीं मिलेगी, आर देयर अवेलेबल जॉब्स इन डेवऑप्स और नॉट, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं कुछ देर में करने वाला हूँ. डोंट वरी. वो भी डेटा ओरिएंटेड प्रूफ के साथ है ना, प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा. सो द हायरार्की ऑफ द कंपनी इज समवन सेट द प्राइमरी पर्सन हु मैनेजेस द और हु रन्स द एंटायर कंपनी इज द सीईओ, है ना. Yes. नाउ और बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनके साथ मिलके कंपनी का कलेक्टिव डिसीजन निकल के आता है. हु आर दे? CFO. सीटीओ, है ना, सीएफओ. और कौन है? सीएफओ, सीटीओ. देयर आर अदर बोर्ड मेंबर्स एज वेल जिनको डेटा संभालने बोला जाता है, सीडीओ. और कुछ हमारे क्लाउड वर्ल्ड के बंदे जो है मार्केटिंग ऑफिसर. सो सी एवरीबडी जस्ट गिव मी एन एग्जांपल कि आप लोगों के घर में हु मैनेजेस योर एंटायर होम. आपका जो घर है वो कौन मैनेज करता है? लाइक द एंटायर होम इज बीइंग मैनेज्ड बाय होम. मॉम, राइट? सो मैं ऑर्गेनाइजेशन की मम्मी कंसिडर कर सकता हूँ क्या सीईओ को? रीजन बीइंग सेड दैट इज, सी एवरी डिसीजन राइट फॉर द कंपनी इज बीन टेकन केयर बाय होम, आर मॉम. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? सीईओ. नाउ दिस इज वन थिंग. अब मुझे एक बात बताओ, हु मैनेजेस द फाइनेंस ऑफ योर हाउस? लाइक आपके घर का जो फाइनेंस है वो कौन देखता है? फाइनेंशियल Father. फादर. तो फाइनेंस कौन देखेगा मेरा? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. अब देखो हर घर में ना एक मामा जी तो होते हैं, राइट? एक ना एक मामा जी होते हैं जो फ्री की मार्केटिंग कर लेते हैं कभी कभी हमारे लिए, है ना. हु इज दैट? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, है ना. द अदर थिंग इज देयर इज वन मोर डेडिकेटेड पोजीशन इन द कंपनी. अगर आप स्टार्टअप में जाओगे ना, और अगर आप L3 और L4 लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो मैनेजरियल या डिलीवरी वाला राउंड रहेगा ना, लास्ट वाला, दैट विल बी टेकन बाय योर सीटीओ. बिकॉज आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर वन ऑफ द कंपनी एंड they were offering me around 38 या 36 LPA a 1 year back. And at that time मेरा जो फाइनल राउंड था ना, दैट वाज बीन टेकन केयर बाय दिस गाय. सीटीओ ने मेरा फाइनल राउंड लिया था. एंड द अदर थिंग इज, सी और एक होता है चीफ डेटा ऑफिसर. सो व्हाट डू यू थिंक, एवरीबॉडी विल रिपोर्ट टू होम? एंड यू हैव टू टेल मी व्हाई एवरीबॉडी विल रिपोर्ट टू सीईओ. बोलो. एंड दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन बाय द वे. मेरे को मजा नहीं आती है अगर इंटरेक्टिव सेशन नहीं रहेगा. सो आई डोंट लाइक
वैसे वन वे कम्युनिकेशन वाला सेशन आई डोंट लाइक ऑनेस्टली. सो व्हाई डू यू थिंक दीज गाइज रिपोर्ट टू द सीईओ? देखो अल्टीमेटली इवन योर फादर व्हेन ही अर्न्स, राइट, घर के जो एक्सपेंसेस है घर चलाने के, वो किसको लाके देते हैं? हु इज द प्राइमरी मैनेजमेंट गाय हियर? हु इज द डिसीजन मेकर फॉर मम्मी। योर हाउस? करेक्ट. वो मम्मी। फाइनेंसेस हम लड़कों से या अपने फादर से कभी हैंडल होते हुए देखा है? देयर माइट बी रेयर केसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी डैड हमारे, उनकी सैलरी आती है या मान लो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है उनको, ही डायरेक्टली स्ट्रेट अवे डिस्कस विद द मॉम एंड टेक दैट डिसीजन, राइट. ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं घर के अपने, he give it to the mom and mom usually takes care. At least मेरे घर में तो ऐसे होता है. I don't know about yours, है ना? That is the correct statement to make here. And everybody, right, every designation here reports to the CEO, क्योंकि है ना ये ऑर्गेनाइजेशन की मम्मी होती है एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन के पप्पा. तो ये डेजिग्नेशन समझे अभी हायरार्की कैसी होती है. नाउ everybody might have heard somewhere कि what is DevOps, you have to go into DevOps, DevOps is in vogue, है ना? ये हमारे लिए तो ठीक है कि आप लोगों को पता है, तो वेलकम टू क्लाउड वर्ल्ड, यू आर एट द राइट प्लेस गाइस. बट व्हाट इफ अगर ये सीईओ को अपने बोर्ड मेंबर्स को बोलना है कि जाओ और गिव मी अ रिपोर्ट एनालिसिस, है ना, एक डेटा ओरिएंटेड प्रूफ दो एंड लेट मी नो वेदर वी शैल इन्वेस्ट इनटू डेवऑप्स टेक्नोलॉजी और नॉट. अगर ये सीईओ ने इन लोगों को, ये बोर्ड मेंबर्स को बड़े बड़े टास्क दे दिए कि मुझे चेक करो और बताओ कि हम लोग डेवऑप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं डेवऑप्स टेक्नोलॉजी में, तो पता है ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्लाउड वर्ल्ड का डेमो ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज दीज पीपल आर वे स्मार्टर एंड दे आर फिल्थी रिच. उनके पास पैसों की भी कमी नहीं. तो व्हाट दे विल डू, दे विल कम टू idc.com. तो एनीबडी नोज व्हाट इज idc.com? idc क्या है? एनीबडी? किसी को पता है व्हाट इज idc? ओके, सो व्हाट इज idc? देखो आज वो भी बताता हूँ. IDC इज अ मार्केट, अ बिजनेस लीडर इन कलेक्टिंग एंड डूइंग द रिसर्च ऑन द डेटा ऑफ एंटायर थिंग, राइट. सो इट इज इंफॉर्मेशन डेटा कॉर्पोरेशन. IDC का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन और डेटा का एक कॉर्पोरेशन है वो. एंड इट इज अ बिजनेस लीडर. देखो रिसर्चेज होती है यहाँ पे. क्या होती है? रिसर्चेज होती है फॉर एवरी टेक्नोलॉजी. तो ये देखोगे ना जाके, गार्टनर हो गया, IDC हो गया. आई थिंक गार्टनर का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा. IDC, गार्टनर, दीज आर द बिजनेस लीडर in analyzing the data in research and development. तो इधर आओ, they'll come here, they'll probably search DevOps forecast. If I search DevOps forecast here, see इधर एक ना 23 से 27 का डेटा मेरे पास दिखाएगा. And this is a research paper by the way. And let me tell you, देखो जब भी आप लोगों ने वाइट पेपर पब्लिशमेंट वाला नाम सुना होगा. नासा में जब भी कोई साइंटिस्ट काम करता है या कोई नई रिसर्च और डेवलपमेंट ये लोग करते हैं, दे डू पब्लिश द वाइट पेपर्स, है ना. हु ऑल डज दिस? कौन करता है ये? बेसिकली ये जो रिसर्च पेपर सबमिट करता है, कौन करता है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट. तो ये जो पब्लिश कर रहे हैं ना ये पेपर, these guys are nothing but, see these guys are nothing but the IT के साइंटिस्ट. एंड लेट मी शो यू यार क्या बोल रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस गाय which is a research analyst, DevOps and DevSecOps, the market continues to grow despite economic uncertainty and we expect this to continue through 2017. मतलब भाई और 3 से 4 साल तो अपन सेफ है. And there are only 13 pages and 4 tables and 3 figures, but this white paper's cost is $7,500, my dear friend. And $7,500 in INR would be how much? कितना होता है ये? See, almost 6,25,000 rupees. तो अब मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में ना जब सीईओ ने अगर, गाइस जो भी बात नहीं कर रहे प्लीज गो ऑन अनम्यूट यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. इफ यू हैव क्वेश्चंस जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज प्लीज गो ऑन म्यूट. सी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी टास्क मिलता है ना इन लोगों को कि सीईओ ने बोला जस्ट गो एंड चेक कि हम डेवऑप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो दे विल सिंपली कम हियर, दे विल बाय दिस व्हाइट पेपर, दे विल रीड द कंटेंट, दे विल कम बैक टू द सीईओ विद द डेटा पॉइंट्स एंड दे विल
कन्वे दिस कि ऐसे ऐसे है, फोरकास्ट अच्छा दिख रहा है, वी कैन इन्वेस्ट. बट व्हाट इफ यू हैव द सेम क्वेश्चन कि मेरे को डेवॉप्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वुड यू बी एबल टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट? घर पे जाओ, गो एंड टेल टू योर फादर कि मेरे को डेवॉप्स करना है, और वो करना है कि नहीं, उसके लिए मेरे को ना ये रिसर्च पेपर लग रहा है जिसकी कॉस्ट है 6,25,000. क्या बोलेंगे आपके पापा, क्या बोलेंगे? व्हाट वुड बी द रिप्लाई फ्रॉम हिम? बोलेंगे हाँ कर ले, बट एक फायरिंग चप्पल जूता कुछ तो आएगा. ही स्ट्रेट अवे टेल कि यार एजुकेशन में तो तूने लाखों रुपए ऑलरेडी डाल दिए, यू आर नॉट इवन एबल टू टेक 20-25K का जॉब. नाउ इन ऑर्डर टू नो कि whether shall I learn DevOps or not, whether shall I invest my money and time in that or not, you have to take 6,25,000 from me. Is that worth? You tell me. Is that worth? No, right? तो सिंपली हम लोग ना थोड़े गूगल ओरिएंटेड ट्रेंड्स देखेंगे बिफोर बिफोर आई गो दैट. अभी तक के जो दिखाया मैंने, एवरीबडी इज क्लियर विद दैट, एवरीबडी इज विथ मी. अभी हमारे मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. यार समवन सीम्स टू बी ड्राइविंग, और उसका ये बहुत बज रहा है यार. स्वप्निल केदारे, कैन यू प्लीज म्यूट मैन? आप शायद फैन के नीचे बैठे हो तो थैंक यू. राइट. सो परफेक्ट, थैंक यू कृतिका, थैंक्स अंकिता. तो किसी को ऐसा डाउट है क्या? पहली बात तो मुझे एक बात बताओ. यू ऑल आर हियर, आई अप्रिशिएट दैट. नाउ टेल मी, व्हाई यू वांट टू लर्न डेवऑप्स? व्हाई ओनली डेवऑप्स? चलो ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछने चाहिए, बट लेट मी आस्क इट टू यू. लेट मी मेक इट एज अ काउंटर क्वेश्चन. व्हाई यू वांट टू लर्न डेवऑप्स? व्हाई डेवऑप्स? इफ आई आस्क यू स्पेशली, एक एक इंडिविजुअल से कि आप लोग यहाँ पे आए हो डेमो अटेंड करने के लिए डेवऑप्स का, सो व्हाई डेवऑप्स? लेट्स सी हु कैन आंसर इट. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई यू शुड गो इनटू डेवऑप्स? बस किसी ने बोला, किसी से सुना, तो जैसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं लोगों की बात सुन के, वैसे इसलिए जाना है? हाउ इज द केस? बोलो. चलो गाइस, आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव. दिस इज योर फोरम, मेक अ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस. जितने क्वेश्चंस है सब पूछो. जो जो आंसर आता है नहीं आता है, लेट इट बी अ सिली आंसर, आई डोंट माइंड. जो पूछता है ना, उसी की नॉलेज बढ़ती है और वही ग्रो करता है. तो कृतिका इज सेइंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग इन IT. सो कृतिका, दैट इज करेक्ट, बट डोंट यू हैव अदर टेक्नोलॉजीज इन IT wherein you can take break and go and learn? Then why specifically DevOps? Should not we ask this question to ourselves? ज्यादा पैकेज है. ये देखो शुभम ने ना, शुभम कामले ने एक एकदम ब्रूटल फैक्ट वाली बात बताई है, एंड आई अप्रिशिएट दिस. वैसे कृतिका आपने भी सही बोला है, अपॉर्चुनिटी तो है इसमें. कैसे है, क्यों है, कब है, प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊंगा इन क्वाइट सम टाइम. And Ankita is saying cause it's in scope and I have some knowledge and I want to learn more about it and get job in the same. परफेक्ट. तो शुभम की बात पे आ जाते हैं. देखो लाइफ में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, वाई का आंसर मिलना बहुत जरूरी है. टुडे यू आर हियर टू लर्न डेवऑप्स. मैंने वो एक कंसेप्ट, तुम्हारा वो एक मिसकंसेप्शन ही दूर कर दिया कि भाई यू शुड बी हियर फॉर डेवऑप्स. यू शुड बी हियर टू टेक जॉब वेर एवर यू गो. अपना ना ब्रेड एंड बटर अर्निंग चालू रहनी चाहिए. टुडे इट इज डेवऑप्स. 5 साल 10 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलेगा, फिर कोई टेक्नोलॉजी आएगा, सीखना पड़ेगा और हमको पढ़ के उसमें स्विच करना पड़ेगा. मंदार इज अगेन राइट, डिमांड में है. हैव क्वाइट क्वाइट गुड फ्यूचर फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स. मैंने बता दिया अभी. IDC का डेटा बताया मैंने, वो भी कौन सा? IDC का, मार्केट लीडर का. राइट. Next few years the world is shifting to cloud, so it's becoming, for now, not next few years, it is already shifted my friends. How? I'll show you. But उसके पहले ना तुम लोगों का ये भ्रम जो है ना, भ्रम में दूर कर देता हूँ. इफ आई सर्च टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन IT in 2024, will this be possible for me if my background is completely different? Of course स्वप्निल, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ये थोड़ा सा मेरे को ना जो ओवरव्यू है ना वो देने दो. लास्ट में जो सेशन रहेगा ना एक, जब हमारा ये सब डिस्प्ले करके हो जाएगा, इट वुड बी ए Q&A सेशन. उसमें आपको जो पूछना है पूछो बिंदास. ठीक है. सी, इफ आई सर्च टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन, अगेन समवन इज ऑन अनम्यूट. समझ नहीं आ रहा है मेरे को, वेयर इज दिस बैकग्राउंड नॉइस कमिंग फ्रॉम?
महेश बाबू, इनको कर दिया मैंने अनम्यूट, सॉरी। सो दिस अ प्लेटफॉर्म, एक सर्विंग प्लेटफॉर्म है शिक्षा करके, इन इंडिया, है ना, क्योंकि वी हैव बीन स्टेइंग इन इंडिया, सो आई एम करंटली डिस्प्लेइंग यू द रिजल्ट्स फ्रॉम shiksha.com, ठीक है। इंडियन सर्विंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या बोल रहा है देखो, 10 नंबर पे रखा है इसने एआर डेवलपर को विद एन एवरेज सैलरी ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद रखा है इसने फुल स्टैक डेवलपमेंट को 9th पे। फिर आता है ब्लॉकचेन। अभी मुझे एक बात बताओ, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट इंडिया में क्यों नहीं है? अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंडिया में उसकी जॉब नहीं लगेगी, बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स आर फॉर जर्मनी। ये जर्मनी के पास है ब्लॉकचेन के सारे प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दे आर मास्टर इन बिटकॉइन। नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन। क्लाउड आर्किटेक्ट, सिर्फ क्लाउड आर्किटेक्ट से अपनी दाल नहीं गलने वाली, क्लाउड को सपोर्टिंग में चाहिए। आईओटी भी इज अगेन वन ऑफ द वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, बट व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में इसकी जॉब्स है क्या? आईटी की सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ पे, ओपनिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? साउथ कोरिया एंड चाइना। व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रीजन कि आईआईटी के जो जॉब्स है साउथ कोरिया और चाइना के पास ही जा रहे हैं, इंडिया में नहीं आ रहे ज्यादा जॉब्स उसके? व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक? Expert है वो। क्या बोल रहे हो? Those are Somebody expert in said this technology. correct. What do I mean? What do he mean by expert is South Korea and China are the master, they are the master in sensors। और आईआईटी किस पे काम करता है? सेंसर्स पे काम करता है, माय फ्रेंड्स, ठीक है। दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग दिस आईओटी के प्रोजेक्ट्स। नाउ कम डाउन, स्क्रॉल डाउन, देखो एआई और एमएल को भी ये क्या बोल रहा है, इंडिया में 5वें नंबर पे, विच इज करेक्ट। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, अगर किसी को क्वेश्चन है ना कि एआई और एमएल 5वें पे क्यों है, तो मैं उसका भी आंसर कर सकता हूँ, बट बिफोर दैट मशीन लर्निंग भी देखो 4थे पे। देन बिग डेटा इंजीनियर, देखो मैंने तुम लोगों को बोला था बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब गई है मार्केट से, बिग डेटा डेवलपमेंट की जॉब नहीं गई है, जिसमें यू हैव टू राइट स्कैला का कोड, जिसमें यू हैव टू राइट पाइथन का कोड। जॉब डिजाइनिंग आनी चाहिए, मॉडलिंग आनी चाहिए, उसमें डेटा इंजीनियरिंग आनी चाहिए। देन यू हैव दिस जॉब ओपनिंग इज इंडिया, और बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है, बट उसमें डेवलपमेंट सीखना पड़ता है अपने को, विच इज नॉट दैट इजी। स्कैला पाइथन की डेवलपमेंट इज नॉट दैट इजी, है ना। नाउ अपना वाला जो कॉम्पिटेंसी है कितने नंबर पे है? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, दिस इज दी प्लेटफॉर्म दैट इज टॉकिंग। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म झूठ बोल सकता है ना, चलो ठीक है, शिक्षा वाले प्लेटफॉर्म नहीं लेते, सिंपली लर्न ये लेते हैं। कम डाउन, इधर देखते हैं डेवॉप्स दिख रहा है क्या अपने को? टॉप 20 दिखा रहा है ये, एंड डेवॉप्स इज वन ऑफ देम। कहाँ पे मैं, कहाँ पे हूँ मैं? सिंपली लर्न। अच्छा चलो, ये भी झूठ बोल सकता है, दूसरा देखते हैं। गिग्स फॉर गिग तो अपना नहीं है ना, ये एक लिनक्स की कम्युनिटी है, राइट, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये लिनक्स की, ओपन सोर्स। ये क्या बोल रहा है? 7.7 कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, इंडिया के जीडीपी में इनका हाथ है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसका वो देखते हैं। ऐसे करना पड़ेगा, रीड मोर। डेटा साइंस इसमें है क्या? आईओटी इसमें एक है, आर्किटेक्ट इसमें एक है, ब्लॉकचेन ये रहा। दोस्त ये भी 5वें नंबर पे बता रहा है आपको, देखो, विथ एन एवरेज सैलरी ऑफ, ये तो देरम है ना, दुबई, ये यूके की, ये कनाडा की। आप समझ में आया डेवऑप्स क्यों? देखो काम करना तो है अपने को कोई भी फील्ड में, बट क्यों ना वो काम किया जाए जिसमें अपने को पे भी अच्छा मिले, जिसमें अपने को वैल्यू भी अच्छी मिले, जिसमें अपने को सैलरी भी अच्छी मिले, राइट। तो अभी समझ में आया वाई डेवऑप्स, बिकॉज डेवऑप्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन आईटी इवन इन टुडे 2024। मैं बोल रहा हूँ कि ये no, these are the surveying platform which he gives you these kind of details, understood? सर्विंग प्लेटफॉर्म ही बोल रहा है। नाउ एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि वाई डेवऑप्स। नाउ आई स्टिल थिंक यू गाइज माइट हैव सेम क्वेश्चन कि डेवऑप्स में जॉब है तो कितने हैं, है तो किधर है, और कितने, और कैसे उसको देखा जाए, और कैसे सर्च किया जाए। डू एनीबडी एल्स हैव दिस क्वेश्चन? अगर मैं आप लोगों की जगह डेमो में होता ना, तो ये क्वेश्चंस तो पक्का पूछता कि भाई आप इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मेरे को बता भी दो जरा
कि डेवऑप्स में जॉब है तो कितने और तो कैसे लगेगी. डू यू हैव दिस क्वेश्चंस? कृतिका हैव दिस. अप्रिशिएट द जेन्युइन कंसर्न फ्रॉम कृतिका. अंकिता को भी सेम डाउट है. लेट मी मेक इट क्लियर नाउ. डेटा ओरिएंटेड प्रैक्टिकल प्रूफ बताता हूँ. सो वन ऑफ द like there are a couple of platforms wherein the recruiters and the companies post their openings, and one of the largest platforms है वो जहाँ पे हम जॉब ढूंढते हैं. कौन से है वो? where we go, where we apply. नौकरी एंड Naukri लिंक्डइन. dot परफेक्ट, बढ़िया है. चलो एटलीस्ट अपने को इतना तो पता है ना. नाउ डेवऑप्स इंजीनियर जॉब्स इन पुणे. नौकरी. मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर पुणे और फ्रॉम आउटसाइड? कैसा है मतलब यू गाइस रिसाइड इन पुणे? बिकॉज आई डू स्टे इन पुणे, तो मैं सिर्फ पुणे का डेटा बताता हूँ अभी फिलहाल के लिए. ओके, कृतिका आकांक्षा इज फ्रॉम पुणे. दैट्स गुड. सागर इज आल्सो फ्रॉम पुणे. परफेक्ट. सो सी, इफ आई गिव यू द डेटा करंट सिर्फ पुणे की मेरे पास में ऑलमोस्ट 600 वैकेंसी बता रहा है. और ये ना नौकरी डॉट इन का भी डेटा नहीं है, ये नौकरी डॉट कॉम का डेटा है. फॉर माई डेवऑप्स इंजीनियर जॉब्स ओनली देर आर 600 प्लस ओपनिंग्स इन ऑलमोस्ट 600 ओपनिंग्स इन पुणे. अगर ये मैं ग्लोबली देखूँ ना, ग्लोबली आंकड़ा देखो क्या है, 5500 जॉब्स इन वैकेंसी. मतलब ये ओवरऑल है, ये सिर्फ पुणे का नहीं है जैसे बता रहा है. बट अगर मैं सिर्फ पुणे का फिल्टर करके देखूँ ना, तो आज का डेटा भी मेरे पास कितना है? ऑलमोस्ट 600 जॉब्स. अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ क्या? बट इट आस्क फॉर एक्सपीरियंस. उस पर भी आते हैं अंकिता, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम. जब क्वेश्चंस मेरे को पूछोगे ना, उसका भी आंसर मैं दूंगा, डोंट वरी. व्हाई डू दे आस्क 2 to 3 years का एक्सपीरियंस? फ्रेशर्स को ओपनिंग है कि नहीं है? सारे आंसर को मैं ना एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. देख रहे हो, सारों के पास में डेवऑप्स का ओपनिंग है. एक चीज क्लियर हो गई. अब ये कहाँ से क्लियर की मैंने? नौकरी से. आप बोलोगे मेरे को दूसरा भी डेटा बताओ. तो देखो, ये वन ऑफ द टॉप जॉब गिविंग प्लेटफॉर्म है ना, जॉब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द टॉप. वो अपने को डेटा दे रहा है. ये आज सुबह का डेटा है. देखो, हर बार ये ना, ये रिफ्रेश होता रहता है. देखो, आज सुबह का डेटा, ये 76 न्यू जॉब ओनली इन पुणे, एंड देयर आर 3000 जॉब्स पोस्टिंग इन लिंक्डइन इंडिया एज वेल. अब मुझे बताओ, अब जो डाउट है, सौरभ सिंह, मेरी समस्या टेक्निकल स्किल की है और मेरी उम्र 31 है. 2015 में एमकॉम हुआ है. बढ़िया है यार सौरभ, आपके पास तो आप कितने एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर सकते हो, सोचो 2015 से. ऐसा नहीं है अंकित, नो ओपनिंग फॉर फ्रेशर्स, ये नहीं है. आई विल डेफिनेटली टेल कि ओपनिंग्स थोड़ी सी कम है फ्रेशर्स के लिए. बट आई हैव माई प्रीवियस स्टूडेंट्स जिन्होंने एज अ फ्रेशर भी 6 से 8 लाख की जॉब ली है डेवऑप्स में. यू कैन टॉक टू देम, देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल विद देम व्हेनेवर यू विजिट द क्लास. एडमिन टीम आपको करवा के देगी. हाँ, अगर रेशियो बोलोगे आप डेवऑप्स का फ्रेशर्स के लिए तो कम है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही कम है. दे डू हायर जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर. और मेरे पास में आए दिन ऐसे ड्राइव के लिंक्स आते रहते हैं जो मैं एडमिन टीम को देता हूँ, एंड दे फॉरवर्ड इट टू द स्टूडेंट्स, और वो ड्राइव में कुछ कुछ अपने बंदे सिलेक्ट होते हैं. राइट. सो अब भी किसी के जहन में या दिमाग में कुछ क्वेश्चन है क्या कि जॉब्स है तो कितने हैं, जॉब्स करना है डेवऑप्स में तो क्यों करना है? वाई डेवऑप्स मैंने क्लियर कर दिया. और जॉब्स, डेवऑप्स में जॉब्स है कि नहीं, ये तो लिंक्डइन और नौकरी बोल रहा है आपको. मैं मेरे घर से डेटा ला के नहीं बता रहा हूँ. राइट. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द रियल टाइम. नाउ if i'm telling you if I am telling you so confidently कि DevOps बूम में है, DevOps करना चाहिए, तो why I am telling you, let me show you. आप क्या सोचते हो, मतलब आज आज की डेट में द कंपनी विच इज हैविंग, लाइक, दुनिया की एक लौती सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास में बहुत सारा डेटा है अपना, एंड विच इज दैट कंपनी? लाइक एवरीथिंग यू सर्च, एवरीथिंग यू डू, सारा कुछ डेटा है उन Google. लोगों के पास. सी, इट इज गूगल. गूगल झूठ बोलेगा क्या? मैं आ रहा हूँ ट्रेंड्स पे. पूरी दुनिया का डेटा है भाई इसके पास, और ये ट्रेंड की एनालिसिस करता है. तो अगर मैं गूगल ट्रेंड्स पे आऊँ, अगर मैं गूगल ट्रेंड पे आऊँ और इधर मैं सर्च करूँ डेवॉप्स, ये डेवॉप्स में सर्च करूँ यहाँ पे, अब देखो इंडिया लेवल पे है नहीं,
इंडिया लेवल पे देखो महाराष्ट्र में इतनी ओपनिंग्स है इसकी, बट व्हाट इफ आई डू इट वर्ल्ड वाइड? पास्ट डे में नहीं करता हूँ, पिछले 5 साल का डेटा बताता हूँ, जस्ट 5 years। अगर मैं तुमको 5 साल का डेटा भी बड़ा बताऊँ ना, 2018 2019 से देखो ग्राफ ना डेवॉप्स का ऊपर ऊपर ही जा रहा है, जा रहा है कि नहीं ऊपर ऊपर? कोविड में जैसे था, कोविड के बाद में तो इनफैक्ट और इसका जो रेशियो है ऊपर ऊपर गया है। अब अगर मैं नीचे करूँ, और मैंने क्या बोला था, देखो इंडिया चौथे नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड में भी डेवॉप्स की जॉब के लिए। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी हैव दीज काइंड्स ऑफ जॉब। डेवलपर के जॉब्स क्यों है हमारे पास में, डेवलपमेंट के जॉब्स क्यों है, डेवॉप्स के जॉब क्यों है? बिकॉज ओपन सोर्स में जो कंट्रीब्यूशन है ना इंडियंस का, इट इज वेरी गुड। सो दीज गाइज हैव ट्रस्ट इन इंडिया कि ये वाले प्रोजेक्ट्स ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नाउ दूसरी और एक चीज बताता हूँ, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, आईओटी मैंने बोला था ना, आईओटी लास्ट 5 years में मैंने क्या बोला था, आईओटी के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स किसके पास है? चाइना एंड साउथ कोरिया। व्हाई गाइस? बिकॉज दे आर द मास्टर्स इन सेंसर्स। सेंसर के मास्टर है दोस्तों लोग। सेंसर का कुछ भी काम रहने दो, सेंसर के पूरा पूरा मतलब ओरिजिनेट फोन जो तुम्हारा असेंबल भी होके आता है ना, चाइना से असेंबल होके आता है। दैट इज द रीजन दे हैव दिस लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स नाउ। ब्लॉकचेन, मी ट्राई टू सर्च ब्लॉकचेन। देखो नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, कैमरून हो गया, गाना हो गया, इन सब कंट्रीज में ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि उनकी उस कंट्री की एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा अच्छे से। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कोई भी किसी ने बोला ना, लेट इट बी डेवॉप्स, आप कोई भी दूसरा डेमो अटेंड करो, कोई भी टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, वो चीज चेक करने से पहले या उसमें एनरोल करने से पहले ना, ये डेटा ओरिएंटेड प्रूफ जरूर चेक कर लेना प्लीज। बिकॉज पीपल आर देयर इन द मार्केट, देर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉडस्टर्स जो ना क्लेम करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आर अप्रोच इज अ बिट डिफरेंट। वी लव टू शो द data oriented proof, we love to show and deliver sessions on the basis of data। theoretical कुछ नहीं होने वाला है। there are a lot of questions in your mind, I do understand, I will try to practically answer that। in some of the answers I will share my personal confidential information, जो मैं आपको बता के ट्राई करूंगा कि आपकी वो क्वेरीज एड्रेस हो। बट टिल नाउ एवरीबडी इज क्लियर, एवरीबडी इज विथ मी। मेरे को ना एक डेमो की फाइल डाउनलोड करने दो जो मेरे को प्रेजेंट करनी है। Just give me a second guys। I need to download that PDF file। Meanwhile कुछ क्वेश्चन है, कवर कर लेंगे। 3 pages, 19 pages। Yes, let me share my screen again। So see, दिस इज द डेमो का हमारा जो भी है हमने बनाया ना ब्रोशर या काइंड ऑफ पीपीटी, दिस इज दैट। डेवऑप्स विद मल्टी क्लाउड लेने वाले हम लोग AWS एंड एज्योर। ठीक है, ये क्विकली एक वॉक थ्रू दे देता हूँ, फिर हम लोग Q&A की तरफ बढ़ेंगे। नाउ सी, ये सब आप लोग ना, ये आपके साथ PDF शेयर किया जाएगा, गो एट योर होम एंड इसको थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे भी मेरे को ना थियरी ज्यादा ना वो ब्लैक बोर्ड वाली टीचिंग में मजा नहीं आता है, PPT या PDF लो और उसको ही पढ़ाते बैठो। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई वे। सो व्हाट इज माई मिशन राइट? अगर आपको ये थियरी पढ़ना है ना, तो आप घर पे जाके पढ़ सकते हो कि क्या है, इंडिविजुअल को ट्रेन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जार्गन और बोल बच्चे जो डाल के रखे हैं, दीज आर नथिंग बट फॉर फ्रेशर्स। जो लोग आते हैं ना, दे डू आस्क अस फॉर द ब्रोशर्स, दे डू आस्क अस फॉर द PDFs, एंड उसके लिए हम लोग को ये थोड़ा सा डेटा इसमें डालना पड़ता है, दिस इज फॉर फॉर्मेलिटी। बट व्हाट माय एक्चुअल मिशन इज, लेट मी टेल यू, माय एक्चुअल मिशन इज, ये जो 3000+ जॉब्स दिख रहे हैं ना आपको, 1000+ जॉब्स इन पुणे, आई वांट, आई हैव मोर देन 30 पीपल हियर नाउ। आई वांट आउट ऑफ दिस 1000, आई वांट 30 पीपल टू बी प्लेस्ड हियर। मेरे को ना ऑफर लेटर कन्वर्जन में बहुत मजा आती है। जितने लोग ऑफर लेंगे लेंगे ना, उतना मेरे को मजा आती है। दैट वे आई यू नो
ट्रीट माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल ट्रेनर व्हेन यू टेक ऑफर, और जब सबको समझ में आता है बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे और ब्रॉडकास्ट, राइट। सो मिशन समझ गया मेरे को, ये मैं बोल बच्चन यहाँ पे पढ़ के ना बहुत बोल सकता हूँ, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। तो माई मिशन इज कि आउट ऑफ लाइक दिस 1000, 30 बंदे तो अपने होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और ये अगर 1000 में से 30 बंदे अपने होते भी है, समंदर में से अगर एक बाल्टी पानी हमने निकाल भी लिया तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या उसमें? नो, तो समंदर है यार, डुबकी लगा के निकल जाओ तुरंत फटाफट, जब तक मार्केट में जाओ अवेलेबल है डेवऑप्स के। क्या बोलते हो, अपने 30 बंदे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बस तो ये ये अपने को कोशिश करना है। अच्छा, ये अभी 1000 में से ये जो 30 मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू बिकम वन ऑफ देम इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। तो वो कैसे बनना है वो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। मिशन हो गया, मेरा विजन क्या है। तो ये विजन समझाने के लिए ना, अगेन मैं आ सकता हूँ यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ के बोल वचन सुना सकता हूँ तुमको, बट आई डू नॉट एंजॉय दैट। सिंपल ना विजन आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज, आई स्टार्टेड माय करियर विद एन एमएनसी नेम्ड एज टेक महिंद्रा। आई होप सबको पता होगा, सबने सुना होगा। डजन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसी इन इंडिया, टेक महिंद्रा। सो आई स्टार्टेड माय करियर देयर एज अ फ्रेशर, and I was working for a project, for a US based project, which was a major telecom provider, ठीक है, which was a major telecom provider। AT&T सुना होगा आप लोगों ने, है ना। AT&T इज द बिगेस्ट टेलीकॉम, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में जियो है ना, वैसे उन लोगों के यहाँ पे यूएस में ना AT&T है। तो AT&T ने क्या किया, क्रिकेट वायरलेस करके एक ना सिम कार्ड का कैरियर था, यानी कि लाइक योर जियो, एयरसेल, है ना, पहले वोडाफोन मतलब और एक होता था डोकोमो, ऐसे करके ना क्रिकेट वायरलेस करके उनका एक प्रीपेड का कैरियर था, उन्होंने वो सब्सिडायरी। अच्छा, आई एम सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट, बढ़िया है यार, फिर तो सेम प्रोजेक्ट बता देना आपको। तो क्रिकेट वायरलेस करके एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम करता था एज अ इंसिडेंट मैनेजर। जब इनिशियली आई ज्वाइन, मैं यहाँ पे पहले टीयर 1 में एप्लीकेशन सपोर्ट करता था, फिर आई मूव टू इंफ्रा सपोर्ट, देन दे पुश्ड मी इनटू इंसिडेंट मैनेजर। तो बीइंग एन इंसिडेंट मैनेजर ये ना बहुत बड़ा टीम था, वी यूज्ड टू वर्क इन 24/7 की शिफ्ट्स, मतलब ग्लोबल टीम थी हमारी। 8-9 बंदे हमारे पास में ऑफशोर पे थे इंडिया से, और ऑन साइट पे यूएस से हमारे पास में 6-7 बंदे थे, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आया था तो ये प्रोजेक्ट पे ध्यान बहुत दे रहे थे टेकएम वाले। सी, सो व्हाट हैपेंड वाज, guys, whoever is not speaking, can you please go on mute? महेश, you have question? Mahesh. महेश, किरण, क्वेश्चन है तो पूछो बंदा। Seems like Mahesh is busy somewhere. So what we are instructed, you know, being an incident manager, हमारा काम क्या होता था, अगर इशू कुछ भी आता था ना, इशू एज एन आउटेज। आउटेज मतलब क्या, अभी ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट चल रही है, अगर मेरी मेरी वेबसाइट बंद हो गई ना तो एंड यूजर को इम्पैक्ट होगा, राइट, और मेरा बिजनेस में डाउन टाइम आएगा, राइट। तो वो जो सिस्टम डाउन का टाइम, फटना। हाँ, आउटेज सिस्टम का फटना बेसिकली, करेक्ट, परफेक्ट। तो जब भी मेरा सिस्टम फटता था ना, तो वी वर इंस्ट्रक्टेड टू एंगेज ना टेक्निकल टीम, मतलब एवीपीज आते थे कॉल पे, टेक्निकल लीड्स आते थे, एंड दीज पीपल यूज टू ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज, है ना, विद इन दी SLA। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो मैं जार्गन्स यूज करके बोल रहा हूँ ना, ये सब मैं बाद में थ्रू आउट द कोर्स समझाने वाला हूँ सबको, डोंट वरी। तो देयर वाज अ पर्सन, ही वाज एन AVP, क्या था वो, ही वाज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन डिजिटल टावर, एंड हिज नेम वाज क्रिस मॉरिस। तो ना, मॉरिसी नहीं यार, मॉरिस। तो ना, इट वाज माय मॉर्निंग शिफ्ट, आई स्टिल रिमेम्बर। और यूएस अपने से कुछ 9-9.5 घंटा पीछे चलता है, राइट। सो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में ना उनकी रात का टाइम होता था। तो एक दिन ना क्यूबरनेट्स पे कुछ इशू फटा, एक आउटेज आया और पूरी की पूरी वेबसाइट क्लाइंट की बैठ गई। क्लाइंट की वेबसाइट बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। तो आई वाज एंड द होल टीम वाज बीइंग इंस्ट्रक्टेड कि अगर कुछ भी इशू आया और वो किसी से फिक्स ना हो रहा होगा ना, तो ये बंदे को कॉल करना है, क्रिस मॉरिस को। अगर इफ एनीबडी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी, या कोई वो कॉल पे जितने लोग हैं, एंड देयर वर मेनी AVPs, देयर वर मेनी सीनियर आर्किटेक्ट्स, टेक्निकल लीड्स, who were trying to fix that issue from a long time and they were not able to fix that issue। तो हमको इंस्ट्रक्शन क्या मिली थी हमारे मैनेजमेंट से कि कुछ कोई भी बंदा अगर इशू फिक्स नहीं कर पाता है ना, तो ही ये बंदे को कॉल करना। तो इट वाज आर 6:37 AM इन द मॉर्निंग। आई डिड कॉल्ड हिम, बंदा शायद, इट वाज हाई, ही वाज, दैट गाय वाज हाई, क्योंकि वीकेंड पे ना यूजुअली
ये लोग क्या करते हैं, मंडे टू, इनका कल्चर बहुत अलग होता है। मंडे टू फ्राइडे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सैटरडे संडे दे डू ड्रिंक, दे डू चिल आउट विद देयर फैमिली। तो दैट गाय वाज हाई, रात का टाइम था, आई डिड कॉल्ड हिम, ही केम इन 5-10 minutes, ज्वाइन द कॉल। एंड ना उसकी एक आदत थी कि वो वीडियो कैमरा ऑन करता था, कॉफी पीते पीते बैकग्राउंड में गाने गाते गाते इशू फिक्स करता था। ही केम ऑन द कॉल, ही फिक्स द इशू इन 10-15 minutes, और वो जाके वापस से सो गया। नेक्स्ट डे हमारे मैनेजमेंट का ना, टेकेम का इंटरनल मीटिंग हुआ। एंड मेरे मैनेजर ने हमको पूछा कि हु वाज द पर्सन हु कॉल्ड क्रिस मॉरिस। आई सेड आई वाज द पर्सन हु कॉल्ड हिम। उसने पूछा कि व्हाई डिड यू कॉल्ड हिम। आई सेड कि आप ही ने बोला था कि अगर किसी के बस में नहीं है वो इशू फिक्स करना, देन योर लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वुड बी क्रिस मॉरिस। तो उन्होंने बोला ठीक है, ही डू फिक्स द इशू, बट ना तुमको एक चीज मैं बता देता हूँ। एंड माय मैनेजर सेड अस कि 9 to 6 AM के बीच में ना कोई भी टिकट पे अगर ये बंदा काम करता है ना, तो उसको हमको $150 पर टिकट पे करना पड़ता है। और अगर ये बंदा 8 PM के बाद में सुबह तक के अगर कोई भी टिकट पे काम करता है ना, तो इसकी टिकट का चार्जेस बढ़ के हो जाते हैं $300 रुपीज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर इसने सिर्फ ना रात को 8 बजे के बाद आया और टिकट पे नोट्स भी अपडेट कर लिए ना, टिकट क्या होता है, टिकटिंग टूल क्या होता है, वो बाद में हम सब देखेंगे। अगर वो बंदा आके ये टिकट पे अगर सिर्फ नोट्स भी अपडेट कर देना, तो भी टेकम हैज टू पे हिम $300 रुपीज। इजंट दैट अमेजिंग, मजेदार है ना। सिर्फ टिकट पे नोट्स अपडेट करने के $300 ले रहा है, $300 ले रहा है बाकी। तो तुम सोचो अभी कि ये बंदे की इतनी वैल्यू की थी, क्यों थी वहां पे। देखो कॉल पे देर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, देर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एवीपीज भी थे, डिजिटल के टेक्निकल लीड भी थे, और ओनली दिस गाय हैव दैट कैपेबिलिटी टू फिक्स द इशू। तो जब इसके पास में इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो ये $300 चार्ज करेगा कि नहीं चलेगा। नाउ यू गाइस टेल मी कि इसको कॉल करना इतना जरूरी था, और ये वैल्यूएबल मेंबर क्यों है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। टेल मी, मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव, Because he has a मजेदार solution. बनो। क्या बोल रहे हो? Because he has a solution. परफेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ही इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू द कंपनी, इजंट इट। या फिर मैं बोलूंगा इसके पास रेजोल्यूशन है प्रॉब्लम का। जो कंपनी के पास प्रॉब्लम है ना, कंपनी के पास प्रॉब्लम है, ये क्रिस के पास ना उसका सोल्यूशन था। तो वो 300 नहीं, अगर वो $500 भी मांगे ना एक टिकट का, तो आराम से ये जो क्रिकेट वायरलेस की AT&T की कंपनी है ना, उसको दे देगी, उसको कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों? कंपनी के पास प्रॉब्लम है दोस्त, इसके पास उसका सोल्यूशन है। नाउ लेट मी टेल यू, ये जितने जॉब्स है ना अभी अवेलेबल जॉब्स दिख रहे, ये सारी कंपनी के पास में डेवऑप्स नाम का एक प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूँ कि अपने जितने मोर देन 30 पीपल है ना, ये सारे लोगों के पास में उसका सोल्यूशन रहेगा। अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइडर रहोगे, तो ये कंपनी आपको जॉब्स देगी कि नहीं देगी, इसमें 30 बंदे अपने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास में सोल्यूशन होना चाहिए। तो बिफोर आप ये जॉब लेने का सोचो, यू ट्राई टू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। सी मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, there are times wherein I have worked in my project for more than 17-16 hours, and there are some days in the week wherein I do work only for 2 hours। और ना मेरे दूसरे टीममेट्स को ये बात हजम नहीं होती मीटिंग है मेरी यार। है ना। देर आर समटाइम्स कि मेरे ना टीममेट्स को ये बात हजम नहीं होती है। पीपल डू नॉट लाइक, मैनेजर को जाके चुगली कर देते हैं, बट मैनेजर नेवर कम्स टू मी एंड आस्क कि भाई तू इतने घंटे काम क्यों कर रहा है, उतने घंटे काम क्यों कर रहा है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही नोज कि आई एम द रेजोल्यूशन प्रोवाइडर, सोल्यूशन प्रोवाइडर। जब भी इशू आएगा ना, लेट इट बी डे लेट इट बी नाइट, अभी मेरे प्रोजेक्ट में ना 24/7 ऑन कॉल चल रहा हूँ मैं। तो कोई भी इशू आता है ना, सबसे पहला कॉल मेरे को आता है, बिकॉज दे नो कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू फिक्स द इशू। फिर मैं 2 घंटा काम करूँ या 20 घंटा काम करूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो तुमको नहीं लगता है अभी मेरा विजन समझ में आया तुम लोगों को क्या है? माई विजन इज कि आई वॉन्ट यू गाइज टू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू द कंपनीज प्रॉब्लम। और जब ये सोल्यूशन होता है ना अपने पास, तो आप 10 लाख मांगो, 15 लाख मांगो, 20 लाख मांगो, दे विल हैप्पीली गिव इट टू यू, प्रोवाइडेड यू शुड हैव द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? आगे बढ़े गाइस, एवरीबॉडी? Yes. Yes. परफेक्ट। तो मैंने वाई डेवॉप्स क्लियर कर लिया। व्हाट इज डेवॉप्स हम नेक्स्ट वीक के सेशन में देखेंगे। वाई डेवॉप्स मैंने कवर कर लिया, एवरेज सैलरी हम कितनी है, ये सब बोल बच्चन ये जाके देख लो। अबाउट अस में आप क्लाउड वर्ल्ड क्या है क्या नहीं, आपको अगर ऑफिस विजिट करना है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड विजिट द ऑफिस। आप टीम से मिल सकते हो, वहाँ पे बात कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो।
अभी नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये की फीचर्स है, ये सब ना अगेन ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए डालना पड़ता है यार। बट आई एम वेरी मच, आपको पता चल गया होगा, आई एम वेरी मच लीस्ट इंटरेस्टेड इन शोकेसिंग दिस थिंग्स। डायरेक्टली मैं डेटा ओरिएंटेड प्रूफ दूंगा। अब करिकुलम पे आते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी ना इसको एक अगेन एक क्वेश्चन से समझते हैं। नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी, आप लोगों ने ना डेवऑप्स की हो सकता है कोई दूसरी बैच या ना कुछ अटेंड किया होगा, कहीं से सुना होगा, या किसी को फेयर इनफ आइडिया होगा। जैसे किसी ने अभी मुझे चैट पे बोला कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक फेयर इनफ आइडिया है मेरे को। क्या लगता है डेवऑप्स में कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स पढ़ाने चाहिए मैंने? लेट इट नेम इट वन बाय वन। चलो बोलो, क्या क्या आप लोगों को कौन से टूल्स पता है कि डेवऑप्स का पार्ट है? अनम्यूट करके बोलो, चैट पे डालो। क्यूबरनेट्स हो गया है ना, लिख लेता हूँ यहाँ पे। इधर मेरा हो गया क्यूबरनेट्स। फिर आप लोग कह रहे हो डॉकर, ठीक है। व्हाट एल्स? बढ़िया है गुरु। आकांक्षा, Terraform. वेरी नाइस आकांक्षा। हाँ ऐसे अनम्यूट करके बोलो यार। जेनकिंस, व्हाट एल्स? Terraform. बढ़िया है भाई। गिटहब, टेराफॉर्म, व्हाट एल्स? Safe. सैप तो डेवऑप्स का टूल नहीं है। No. Safe. सेफ, अच्छा शेफ कह रहे हो, Ansible. शेफ। Chef. Yes. Then शेफ कह रहे Ansible. हो, एनसिबल कह रहे Ansible. हो। शेफ बोल रहे हो तो पपेट भी बोलोगे आप। Yes. Correct. नेक्स्ट, शेफ और पपेट का ना मैं तुम लोगों को आज डिफरेंस बताता हूँ, और इसके बाद में कभी तुम लोग उनका नाम नहीं लेने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट। बहुत है यार, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टूल्स इन डेवऑप्स। चलो बताओ फटाफट नाम। Monitoring Nagios tool. Nagios. परफेक्ट, आप बोल रहे हो Nagios। मॉनिटरिंग में आजकल का जो राजा है ना अपना, वो है ये। सुना है प्रोमीथियस ग्राफाना के बारे में, एल्क स्टैक के बारे में, लोकी के बारे में? सुना है ये टूल्स के बारे में? न्यू रेलिक, डायनेट्रेस? नहीं ना, कोई नहीं। व्हाट एल्स? और कौन से टूल्स हैं बताओ? गिटऑप्स में दो टूल्स बहुत चल रहे हैं आजकल। Maven. क्लाउड वर्ल्ड एडमिन टीम, आई थिंक मेरे से तुम लोगों ने ना स्क्रीन शेयर करने की परमिशन छीन ली है। मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ क्या, इसलिए ऐसा किया एडमिन टीम आपने? शुभम, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई डोंट नो एनीथिंग। सो शुभम, ये कोर्स डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि ना, अच्छा चलो इसका आंसर दे देता हूँ। शुभम ने जो क्वेश्चन पूछा ना, राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछा है। बट एडमिन टीम प्लीज गिव मी राइट्स टू शेयर द स्क्रीन। बैकग्राउंड में किसी ने कंप्लेन कर दी क्या यार मेरी, कि ट्रेनर ठीक से सेशन ले नहीं रहा है, इसको सेशन बंद करने बोलो ऐसे? 1 सेकेंड शुभम, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी कर देता हूँ मैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। साहब इन लोगों ने तो मेरी स्क्रीन शेयरिंग की कैपेबिलिटी छीन ली। एडमिन टीम, सो रहे हो क्या? ये लो, हमारी एडमिन टीम का आज शायद से नाश्ता नहीं हुआ है, या फिर संडे है ना आज, किसी ना किसी को शाम का टाइम दे रहे होंगे वो लोग। पता है ना संडे को यूजुअली व्हाट डू कपल्स डू, बस वैसे ही है। एडमिन टीम वहाँ पे बिजी है। हाँ, तो एक्चुअली मैं कहाँ पे था यार, मैं खुद भूल गया इन लोगों के चक्कर में। क्या डिस्कस कर रहे थे वैसे हम? हाँ, टूल्स आप डिस्कस ये कर रहे थे। क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे ना? राइट ये राइट। जो तो गिटऑप्स में ना, गिटऑप्स में दो टूल है। गिटऑप्स में दो टूल है आजकल बहुत चल रहे हैं, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, आर्गो सीडी और फ्लक्स। अभी देखो, शेफ और पपेट है ना, शेफ और पपेट आज से 5 साल पहले बहुत चलता था। शेफ है ना, शेफ, शेफ ये वो वाला शेफ नहीं है जो खाना बना के पकाता है अपने को। ये शेफ ना आजकल कंपनी में भी लोगों को बहुत पका रहा है। तो इसको हम लोगों ने बोला तू बंद हो जा भाई, पपेट तू भी बंद हो जा। सारे काम जब टेराफॉर्म से हो रहे हैं, तो शेफ और एंसिबल क्यों यूज करना? अब वो क्यों हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। चलो, इन लोगों ने मेरा स्क्रीन शेयरिंग का कैपेबिलिटी मेरे को वापस दे दिया है ना। नाउ, किसी ने क्वेश्चन दिया था, शुभम कामले, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो दोस्त, हमने ना हमारा कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया है। और लेट मी टेल यू, मेरे पास ना 50-50 ऑडियंस आता है, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आई ट्रेन आर देयर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल प्रूफ। देखो मैं मेरा खुद का ना
व्हाट्सएप शेयर करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ना एक बंदे का मेरे को एक फीडबैक आया था, सी, अब ये मैंने उसको इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर किया है। डू यू नो हु दिस गाय इज? ही हैड इन्वेस्टेड इज 60,000, ठीक है, एक एक जगह पे इसने 60,000 भर के डेवॉप्स का कोर्स किया है। एंड डू यू नो कि इसको किस टाइप का वहाँ पे ये मिला है, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रीटमेंट मिला है। तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती थी, उसने 2 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे भर दिए। एंड ट्रस्ट मी, उसके फादर यार ही इज अ ऑटो ड्राइवर, और ये बंदा भी मतलब इसमें काम करके, मतलब ना वो होता है ना, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन वाली कोई कंपनी में काम करके यार बेचारे ने पैसे वैसे भरे। एंड इट वाज कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ मनी। जो ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स भी वहाँ के कुछ ढंग के नहीं है। एंड ही डिड रीच्ड आउट टू मी, समवन गेव हिम माय रेफरेंस और ही रीच्ड आउट टू मी। इसका एक्चुअली ना मुझे तुम लोगों को एक फीडबैक बताना है, बट मैसेजेस मेरे लोड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मैं फीडबैक तुम लोगों को मे बी ऐसे सर्च करके बताता हूँ। पुराने मैसेज लोड नहीं हो रहे। ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन। It is asking me to open the WhatsApp on my phone. Let me try to open it. तो देखो, आई एम ट्राइंग टू शेयर माय कॉन्फिडेंशियल पर्सनल, जो है ना, कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, डायरेक्टली शेयरिंग माय व्हाट्सएप, बिकॉज यही तो कॉन्फिडेंस लाता है यार अपने में। क्या लाता है कॉन्फिडेंस? ये देखो, ये मॉक की रिकॉर्डिंग्स भेजी है उसको मैंने, सी, फरवरी में मैंने उसको ना बैच की रिकॉर्डिंग्स शेयर की थी। ये देखो शुभम, आपका आंसर इसमें है। क्या आंसर दे रहा है देखो, क्या बोल रहा है? आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई हैव सीन वीडियोस, इट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन आईटी एंड आई फेल्ट सो मच मोटिवेटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू ऑल सेशंस एंड कंप्लीट द कोर्स। ये देखो, अब ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये तो वो बंदा है जिसने 60,000 भर के डेवॉप्स 8 महीने से जो सीख रहा है, वहां पे उसको कुछ सीखने को नहीं मिला। व्हेन ही स्टार्टेड वाचिंग माय वीडियोस, सी, दिस इज द फीडबैक। अच्छा, अगर मेरे को तुम लोगों को बेवकूफ़ी बनाना होता तो मैं तुमको ये फेब्रुवरी का डेटा नहीं बताता, पहली चीज तो। एंड नो बडी इन द लाइव डेमो है ना शेयर करता है कोई व्हाट्सएप का डेटा। देखो ये 28 का डेटा है, तब से ये प्रिपेयर कर रहा है। बट ये इसके कुछ और प्रॉब्लम्स भी, इसलिए अभी तक एक इंटरव्यू उसने क्रैक किया था, बट ऑफर वाले स्टेज के पहले उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ही वॉज डायग्नोज्ड विथ डेंगू, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी मुझे एक बात बताओ, लेट्स कम बैक टू ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, दे टुक माई इंटरव्यू और जेनकिंस, देन दे आस्क्ड मी टू वर्क ऑन गो सीडी। देन जेनकिंस के और रिप्लेसमेंट टूल्स कौन से पता है? सीआई सीडी के लिए गिटहब एक्शंस, और कौन से? बैम्बू। और टूल पता है क्या जेनकिंस का रिप्लेसमेंट सीआई सीडी के लिए? बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है। ट्रेविस करके एक है, जेनकिंस के रिप्लेसमेंट के देयर आर 10 to 15 different tools. Now, my company took my interview almost 3 rounds on Jenkins. Then जब project में मेरे को डाला, they do ask me to work on GoCD. Now you guys tell me, is it possible for me to learn and implement Jenkins and work on GoCD, work on GitHub Actions, work on Bamboo? कौन बोल सकता है मेरे को? Is it possible? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एवरीबडी माइट हैव मोपेड बाइक, सबके पास एक्टिवा रहेगी, है ना, नॉन गियर की बाइक, और सबको एक्टिवा चलानी भी आती रहेगी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जेनकिंस को ना एक्टिवा कंसिडर कर लो, गोसीडी और गिटहब एक्शंस को ना अपनी प्लेजर, डियो, और कौन सी है, जुपिटर है, ये सब कंसिडर कर लो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक्टिवा चलानी आती है तो आपको जुपिटर चलानी आएगी कि नहीं आएगी? अब हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मेरे घर में अगर एक्टिवा है, हो सकता है कि आपके घर में जुपिटर हो सकता है कि आपके घर में डियो हो सकता है कि आपके घर में एक्सेस हो, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, दे विल आस्क अस टू राइट एंड इम्प्लीमेंट दिस CI/CD पाइपलाइन ऑन डिफरेंट टूल्स। बट कंपनी को एक चीज पता होती है। अब दूसरा कैच क्या है? देयर आर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ टूल्स इन डेवऑप्स। हर टूल आप
लॉजिकली सोचो और मुझे बताओ, हर टूल बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप पढ़ सकते हो क्या? आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्या? इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, राइट? इट विल टेक years टू कंप्लीट एवरी टूल इन डेवॉप्स। ये डेवॉप्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्त। हंड्रेड्स ऑफ टूल्स है यहाँ पे मार्केट में, और हंड्रेड्स ऑफ टूल्स सीखने पड़ते हैं, बट इसका एक टेक्निक है सीखने का भी और जॉब लेने का भी। अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है जेनकिंस की, अगर क्लाइंट देखता है अगर आपको जेनकिंस आता है, तो यू आर फेयरली कोचेबल इन GoCD। एक दो दिन में मैं सीख गया, और एक दो दिन में मैंने उनको GoCD की पाइपलाइन बना के दे दी। ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट था। देन मेरा जो प्रोजेक्ट अभी आया है वो है गिटहब एक्शंस पे। गिटहब एक्शंस भी मेरे को नहीं आता था, गिटहब एक्शंस भी मैंने सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। इसका लॉजिकल रीजन क्या है? अगर आपको एक्टिव आती है ना, तो आपको एक्सेस भी आएगी और आपको जुपिटर भी आएगी, राइट? तो कंपनीज मोस्टली क्या करती है, अगर गिटहब एक्शंस की भी ओपनिंग होगी ना, इंटरव्यू हो सकता है आपका जेनकिंस पे ले ले और आपको ये टूल पे काम दे दे। तो मेंटली ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना। द अदर पार्ट टू द स्टोरी इज, तो इसमें कैच है कि सर हम लोग जेनकिंस करने वाले हैं कि ये सारे टूल्स करने वाले हैं? तो मेरे को एक बात बताओ, मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर जुपिटर का है कि एक्टिवा एक्टिवा का है? सबसे जंकिंस ज्यादा का है ना? वही वही, करेक्ट। सो एक्टिवा का। जेनकिंस हैव the most number of market share, मतलब दिस इज वन ऑफ द एक्सटेंसिवली यूज्ड टूल इन द मार्केट। तो अपन ने जेनकिंस सीखना चाहिए या बैम्बू सीखना चाहिए, आप बताओ? जेनकिंस। तो हम क्या सीखने जेनकिन। वाले हैं? हमारे करिकुलम में पता है, हम जेनकिंस सीखने वाले हैं। और ये जो आप जाके देखोगे ना, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, लिनक्स डेप्थ में होगा, गेट गेटअप डेप्थ में होगा। जेनकिंस में आपका एज अ पॉड ऑन द सर्वर, पुश बेस्ड पुल बेस्ड अप्रोच होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, डॉकर के ही सिर्फ आपके 3 से 5 सेशन होने वाले हैं। और क्यूबरनेट्स का तो ना, ये तो अपने पूरे डेवॉप्स का ना राजा है, राजा। ही इज द किंग इनटू डेवॉप्स। तो ये किंग का है ना, किंग को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने को। इट विल टेक मोर देन 2 months टू जस्ट कंप्लीट क्यूबरनेट्स के सेशन। और ये जितना भी डेटा रहेगा ना, ये पढ़ने पढ़ने कैसे वाले हम पता है क्या? वी विल लर्न ऑल द थिंग्स ऑन अ प्रोडक्शन बेस्ड फॉर्मेट। देखो सारी चीजों की मैंने गिटहब पे स्क्रिप्ट बना के रखी है। ये गिटहब के स्क्रिप्ट से पढ़ने वाले हम सब। प्रोडक्शन में जैसे चीजें होती है ना, I will try to display, I will try to teach, I will try to convey all, I will try to broadcast all the information। जो मेरी प्रोडक्शन की पाइपलाइन है ना दोस्त, CI/CD की, जेनकिंस में मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, आई विल राइट दैट पाइपलाइन टू यू, आई विल टीच ऑन दैट पाइपलाइन टू यू गाइस। व्हाट अबाउट रियल टाइम प्रैक्टिस? तो हेलो। जो, यस, ये टूल सीखने के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होनी चाहिए? एक टूल सीखने के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट कुछ नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक प्री रिक्विजिट होनी चाहिए वो होगी लिनक्स, वो होगी वर्चुअलाइजेशन, वो होगी क्लाउड। सो बिफोर योर डेवॉप्स के क्लासेस या सेशंस, विल बी कंडक्टिंग लिनक्स के सेशंस, विल बी कंडक्टिंग क्लाउड के सेशंस, और उसके बाद में हम डेवॉप्स सीखेंगे। मतलब उसके बाद में हम फिर डॉकर से चालू करेंगे, क्योंकि अगर आपको लिनक्स और सर क्लाउड ही नहीं एक्चुअली सिखाया। सर हम्म, मेरा एक क्वेश्चन है। वो क्लाउड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आई मीन द AWS क्लाउड पढ़ने वाले हैं या अजोर क्लाउड पढ़ने वाले हैं या आप GCP आप पढ़ने वाले हो? आप मुझे बोलो तीनों पढ़ाने के लिए, मैं तीनों पढ़ा दूंगा। नहीं नहीं बट वी, नहीं, ऐसा नहीं, मैं स्पेसिफिक पूछा तो हूँ देखो क्योंकि ड्यूरिंग द मतलब। स्टार्ट ना, ड्यूरिंग द स्टार्ट, क्योंकि मैं AWS पे लेने वाला हूँ आपका डेवॉप्स में। मेरे जो सेशंस रहेंगे वो AWS पे रहेंगे आपके डेवॉप्स के। सो स्टार्ट में आपका एक डेडिकेटेड ट्रेनर आएगा, एक्सपर्ट। हम ट्रेनिंग देंगे। लिनक्स का एक डेडिकेटेड ट्रेनर है और AWS का डेडिकेटेड ट्रेनर है। उसके बाद में डेवॉप्स के पूरे सेशंस मैं लूंगा। देन जब डेवॉप्स के सेशन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका एज्योर डेवॉप्स चालू होगा। सो वी हैव मल्टी क्लाउड, जिसमें हम AWS और एज्योर कवर करवाने वाले हैं। हाँ, उसका उसका सपोर्टिव क्वेश्चन मेरा मेरा एक ये है कि आजकल ना जॉब डिस्क्रिप्शन में जेडे में ऐसा रहता है कि अजोर डेवऑप्स इंजीनियर और ये AWS डेवऑप्स इंजीनियर। राइट। मतलब ये नॉर्मल डेवऑप्स इंजीनियर और ये पर्टिकुलर क्लाउड बेस्ड डेवऑप्स इंजीनियर, क्या मतलब डिफरेंस क्या है? मतलब टूल्स तो वगैरह। डिफरेंस, राइट राइट, हाँ, दिस इज अ हाँ। गुड क्वेश्चन बाय द वे। तो डिफरेंस क्या है पता है? एक ही डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा यार? कहाँ गया हो यार अभी? कट हो गया क्या? ये जो हमने लिखा था ना गेटअप के बाद में बैम्बू जेनकिंस वगैरह, इधर जो जेनकिंस है ना, AWS पे रहोगे तो AWS, AWS डेवऑप्स पे अगर कोर ओपनिंग है उनकी, तो AWS डेवलपर्स टूल्स रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि कोड डिप्लॉय,
कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन। और ट्रस्ट में जो जेनकिन सीखने वाले हैं ना, उससे तो ये 100 गुना ना इजी टूल्स है। और वैसे ही अगर उन्होंने उन्होंने एज्योर के लिए पूछा तो एज्योर में एज्योर डेवऑप्स होगा, एज्योर पाइपलाइन वगैरह यूज करेंगे यहाँ पे। तो मेजरली ना यहाँ पे ज्यादातर के, इन माई एक्सपीरियंस अभी तक के जितने लोगों ने मेरे पास से ऑफर लिया है ना, मैंने ना 2 से 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा है इस पे काम करते हुए। ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं। पता है क्यों? उसका एक रीजन है। ये ना पेड सर्विसेज है। जेनकिंस क्या है? अपना ओपन सोर्स टूल है। फ्री में ऑर्गेनाइजेशन का जो काम हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेगी कि जिसमें उनको हैवी कॉस्ट देना पड़ रहा है क्लाइंट को, उसमें वो लोग प्रेफर करेंगे? आप बताओ। तो जो चीज ज्यादा चल रही है अपन वो सीखेंगे। और ये सीखने के लिए कुछ नहीं, अगर मैं आपको जेनकिन सिखा दूं ना, एक नॉर्मल सी यूट्यूब पे वीडियो भी देख लोगे ना आप, तो एक दिन में सीख जाओगे। फिर सर ये मार्केट में आप जो बोल रहे हैं जेनकिंस ओपन सोर्स है, दैट इज हम्म। ओके, बट आप जो बोल रहे हैं ना एडब्ल्यूएस डेवलपर टूल्स एंड कोड डिप्लॉय, कोड बिल्ड एंड कोड पाइपलाइन, ये पेड सर्विसेज, आई मीन एंटरप्राइज सर्विसेज है, राइट? Yes. So why company is choosing that kind of services and not for Jenkins? अगर कंपनी चाहती है ना कि उनका कंप्लायंस का इशू है, और वो चाहती है कि ओपन सोर्स पे उनका डेटा नहीं जाना चाहिए। मतलब कुछ कुछ कंपनी है ना, कुछ कुछ क्लाइंट, अभी मेरा एक क्लाइंट है, यूएस बेस्ड एक क्लाइंट है मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वी आर यूजिंग एडब्ल्यूएस डेवऑप्स देयर। मैंने ये कोड पाइपलाइन भी लिख के दी है उनको, एडब्ल्यूएस डेवलपर टूल्स भी वहाँ पे सेटअप किए, लैम्डा से ऑटोमेशन लगा के दिया है। फिनॉप्स करके कभी नया ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है जहाँ पे आप लोग ना फाइनेंशियली क्लाइंट को बजट कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके देते हो। तो वो वाले प्रोजेक्ट में ना हम लोग ये यूज कर रहे हैं। बट वो ना बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, और वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है पता है? हमको जो भी चाहिए ना फुल स्टॉप सोल्यूशन हमको क्लाउड पे दो आप। बट जब हमने उनको क्लाउड पे दिया ना, तब उनको पता चला कि साला कोड डिप्लॉय, कोड बिल्ड, ये काम तो मेरा जेनकिंस भी कर रहा है। तो फिर वो हम पे चिल्लाने के लगे कि अभी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके दो। फिर हमने फिनॉप्स ऑप्टिमाइजेशन उनको लगा के दी। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, राइट? देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल है ना, कोई कोई वेजिटेरियन वेजिटेरियन चीज प्रेफर करता है, कुछ कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है आप सर्वर क्लाउड पे चलाओ, CI/CD आप ओपन सोर्स से चला लेना। कुछ कुछ कंपनी बोलती है मेरे को सारा कुछ डेवऑप्स भी मेरे को पूरा क्लाउड पे चला के दो। तो AWS एज्योर ने ये कैपेबिलिटी आपको दी है, एंटरप्राइज लेवल सर्विसेज, कि वो डेवऑप्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे एंटरप्राइज में। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। एंटरप्राइज लेवल पे आप टिकट रेस कर सकते हो, AWS को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या आप स्पेंड करोगे? आप कॉस्ट स्पेंड करोगे यहाँ पे। तो आजकल ना Okay. क्लाइंट बहुत ज्यादा फिनॉप्स ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं। तो क्लाइंट वो बंदों को ज्यादा पसंद करता है जो कॉस्ट बचाए क्लाइंट की। तो अगर रिकमेंडेशन देना होगा ना आपको भी क्लाइंट को, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, ऑलवेज गो विद टूल्स लाइक जेनकिंस, गो CD। और एक क्वेश्चन है, अभी जो ये सर्विसेज हम क्लाउड पे यूज करेंगे जेनकिंस और एडब्ल्यूएस डेवलपर टूल्स के, तो क्लाउड एडब्ल्यूएस में हम ऑलमोस्ट कौन से सर्विसेज, मतलब मैक्सिमम सर्विसेज कैप्चर करने वाले हैं, एडब्ल्यूएस हो या अजूर बताता में हूँ हो? आई थिंक यहाँ पे रहेगा वो। दीज आर दी सर्विसेज, AC2 इन डेप्थ होगा, VPC होगा, S3 होगा, RDS होगा, क्यूबरनेट्स मतलब EKS होगा, राउट 53 होगा, सर्टिफिकेट मैनेजर होगा, लोड बैलेंसर होगा। इसमें और एक दो सर्विस नहीं डाली है, लाइक सीक्रेट्स मैनेजर। सो जितनी डेवऑप्स के लिए अपने को जरूरी सर्विसेज है ना अंदर, सारी सर्विसेज कवर होने वाली है। देखो, पहली बात तो ना, अपने को क्लाउड इंजीनियर का जॉब लेना है कि डेवऑप्स इंजीनियर का जॉब लेना है? बोथ आर डिफरेंट। डेवऑप्स। दोनों की रोल्स डिफरेंस है। अभी क्लाउड के अंदर है ना, AWS के अंदर देर आर मोर देन 200+ सर्विसेज। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। क्लाउड का एक EC2 का सेशन तो मैं ही लेने वाला हूँ तुम लोगों का। तो ये नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। अभी पूरे 200 सर्विस की जरूरत है क्या मेरे को डेवऑप्स चलाने के लिए? तो जितनी सर्विसेज मेरे को जरूरी है डेवऑप्स के लिए, उतनी सर्विस मैं लूंगा। नेक्स्ट और अदर थिंग और इज, एक जो कुबरनेटिस जो है, कुबरनेटिस जो स्पेसिफिकली हम मतलब हाइब्रिड सीखने वाले हैं या क्लाउड बेस EKS वगैरह, नहीं, EKS AKS? हम दोनों सीखने वाले हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड वर्ल्ड। देखो, हाँ वही। इंडस्ट्री में आप जब जाओ ना, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट मिलेगा या आपको एंटरप्राइज का मिलेगा। कुछ कुछ कंपनी ना ऑन प्रीमाइसिस पे भी क्यूबरनेटिव्स चलाती है। तो हम लोग चालू किससे करने वाले मालूम है? ये देखो दोस्त, प्रैक्टिकल प्रूफ। चालू ओपन सोर्स से करने वाले हम, क्यूब एडम से। और क्यूब एडम के बाद हम लोग जाएंगे EKS पे। सी, तो सब कुछ प्रोविजन है दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। और ये पूरा प्रोडक्शन ग्रेड प्रैक्टिस होगा पूरा, डो नॉट वरी ऑन इट।
क्लियर है अरुण? या क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट। तो आप ना थोड़ा सा घर पे जाओ, ये चीजें देख लो, कंटेंट क्या क्या है क्या क्या नहीं। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि सर इसमें तो इतने सारे टूल है, किसी ने नाजियोस बोला, किसी ने पता नहीं अलग अलग टूल बोले। तो अगर दोस्त सारे डेवऑप्स के टूल हम लोग कवर करने लग जाए ना, तो इट विल टेक अस इयर्स टू कंप्लीट दैट। तो अगर आपके पास में सालों का टाइम है, मतलब यू हैव 1 or 2 years फ्रॉम योर लाइफ टू गिव मी, मेरे को दो, मैं पढ़ाता हूँ। इफ यू वांट जॉब एज सुन एज पॉसिबल, विच आई थिंक इज द केस, है ना? क्योंकि मैं भी अगर कोई क्लास ज्वाइन करूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को जल्द से जल्द जॉब मिल पाए। तो कंटेंट ही ऐसा हमने डिजाइन किया है कि मार्केट में जो टूल की रिक्वायरमेंट है, वो टूल इन डेप्थ में पढ़ा के कैंडिडेट को जल्द से जल्द प्लेसमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इवन आई बीइंग एन इंडिविजुअल, मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया हूँ, है ना? मैं भी अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करूँ तो मैं चाहूंगा कि वो वर्थ हो और मेरे को जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट मिले। एट द एंड एवरीबडी इज हियर फॉर प्लेसमेंट, है ना? एवरीबडी इज हियर फॉर प्लेसमेंट। तो जल्दी से जल्दी जॉब लेनी बहुत जरूरी है। सो बी पैशनेट, उस टाइप का पैशन बताओ और उस टाइप का ना खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और एक चीज समझ लो कि जो भी टूल है ना, अभी जैसे ना प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ साथ मेरे इसमें न्यू रेलिक और डायनाट्रेस भी हम लोग कर रहे हैं अभी। बट दीज आर एंटरप्राइज टूल। तुमको पता है $600 तो सिर्फ न्यू रेलिक का भरती है मेरी कंपनी। वही काम मैं अरे उनको सर, एक प्रोमीथियस। एक और क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नो बट एक इश्यूज। और क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो को जॉब ओपनिंग में एक और मतलब जेडी में लाते हैं वो लोग कि ये स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए डेवऑप्स में। चाहे वो सेल स्क्रिप्टिंग हो या पाइथन हो या कोई भी स्क्रिप्टिंग, ये क्या है, ये कवर करने वाले हैं क्या हम इसमें? देखो, आई आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 6 years। आई लिटरली टेक इट ऑन माई वर्ड्स, और मैं जितने प्रीवियस बैच के बंदों को भी बताता हूँ ना, आई डू नॉट नो सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई डू नॉट नो सिंगल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्टिल ना मैं यहाँ पे तुम लोग को पढ़ा भी रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन वाले मेरे को छोड़ भी नहीं रहे। तुम्हारी लाइफ इजी किसने बनाई है ये वाले केस में पता है? एक चैट जीपीटी नाम का टूल है। ट्रस्ट में, जब मेरे को गोसीडी नहीं आता था ना, जब मेरे को प्रोजेक्ट में उन लोगों ने डाला जेनकिंस की जगह, बोला गोसीडी की पाइपलाइन बना के दे, मैंने चैट जीपीटी से पूरी पूरी पाइपलाइंस लिखवाई है। तो अगर ये आप 2 साल पहले मेरे पास आते और 2 साल मेरे को पहले बोलते ना कि शेल स्क्रिप्टिंग लेना है, शेल स्क्रिप्टिंग लेंगे वैसे हम, पाइथन स्क्रिप्टिंग नहीं लेने वाले, बट शेल स्क्रिप्टिंग लेने वाले हम, शेल स्क्रिप्टिंग पे ही काम होगा। तो अगर 2 साल पहले आप लोग ये चीज बोलते ना, तो मैं बोलता हाँ अभी करके जाओ। आज के टाइम पे अगर उसने पूछा ना तेरे को शेल स्क्रिप्टिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन आती है, ऑलवेज से यस। क्यों पता है? सेकेंड्स में आपको चैट जीपीटी क्या करके देता है, सिनेरियो देना है बस तुमको, पूरी स्क्रिप्ट तुमको रेडीमेड बना के देता है वो। तो बट अपने को वो ठीक है सर ने क्या, वो ठीक है, प्रैक्टिकली हम वो बोलते हैं कि ठीक है, वो हम बोलेंगे चार्ट जीपीटी से कोड उठाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन चैट करेंगे, जीपीटी से दैट इज उठाएंगे ओके। ये उनके सामने नहीं बोलना है। आती है, नहीं नहीं मैंने नहीं, मेरे वही प्रोजेक्ट में वही बोला। मैं परफेक्ट परफेक्ट, वही मैं बोलने वाला था कि बट वो तो वो हमें जब इंटरव्यू करेंगे, वो तो टेस्ट भी करेंगे ना हमें प्रैक्टिकली, बंदा मतलब सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स, तो शेल स्क्रिप्टिंग हम लिखने ही वाले हैं ना। क्यों मैडम की जो आप क्यों मैडम का क्लस्टर डिप्लॉय करने वाले हो ना दोस्त, ये शेल स्क्रिप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ओके इधर ओके। कुछ ऐसा ना, ये देखो डॉट एस एच शेल स्क्रिप्ट आपकी होती है, आपको अगर हाँ हाँ। पता होगा तो। ये देखो मैंने शेल स्क्रिप्ट लिख रखी है यहाँ पे, बस ये स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर दो और आप इसको ना डे इन डे आउट जाके एक्सप्लेन, मतलब प्रैक्टिस करने वाले हो आप इस पे। तो नींद में से ओके। भी जब अगर 3 महीने बाद मैं उठा के पूछूंगा ना, यू गाइस विल बी एबल टू हाँ। एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, डोंट वरी। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये प्रैक्टिकल मेरे को या तो वही, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे ना, डेटा ओरिएंटेड प्रूफ दूंगा मैं, डोंट वरी। क्योंकि मेरे को पता है नहीं यार नहीं, मार्केट में ना। ये क्यों आया है, ये क्यों मैंने खुद मैंने मतलब अटेंड किया था, तो ये सब क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने वो प्रैक्टिकली आपसे पूछे, नहीं नहीं, डेफिनेटली यार रीजन देखो, भी है। डेफिनेटली या मैं क्या बोल रहा हूँ, देर आर ट्रेनर्स हु विल नॉट इवन अलाउ देयर पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देयरसेल्फ, बट आवर अप्रोच इज वेरी डिफरेंट यार। मैं ये मानता हूँ कि इट्स योर प्लेटफॉर्म, यू हैव ऑल द फकिंग राइट्स टू आस्क मी एनीथिंग। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे दिमाग में सोचना नहीं है कि ये सिली क्वेश्चन है। क्यों मालूम है उसका एक बेनिफिट कैसे होगा? मान लो कोई क्वेश्चन, अभी जैसे अरुण का क्वेश्चन था, किसी ने यहाँ पे लिखा मेरे को, अंकिता ने बोला है कि इट्स मोर कन्वीनियंट। हो सकता है कि और 10 बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं मुझे पूछने के लिए। तो जो पूछता है ना, आई पर्सनली लाइक देम वेरी मच, क्योंकि जो जितना ज्यादा पूछेगा ना, मेरे से उतना नॉलेज ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और दूसरी चीज ना, आई बीइंग अ ट्रेनर, मैं यहाँ पे ना ऐसे नहीं आता हूँ कि मुझे ही सब कुछ पता है।
जिंदगी में ना अप्रोच अपना ऐसे बनाना है, वी शुड बी अ गुड लर्नर, क्योंकि रीडर्स आर द लीडर्स। जो जितना लर्न करता है ना लाइफ में, ट्रस्ट मी, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो उतना ग्रो करता है। ईगो लेके चलेंगे ना, हमको सब आता है, दैट इज नॉट द केस। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिखाने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे इनफैक्ट काफी चीजें मैंने मेरे कैंडिडेट से सीखी है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। तो मैं कभी ये नहीं करूंगा। लैपटॉप चार्जिंग रिमाइंडर, बढ़िया है गुरु, बट 40% मेरा चल जाएगा। यश, थैंक्स एनीवेज फॉर दैट। तो अभी समझा, अब ना इस पे जाओ, थोड़ा सा जाओ और देखो हमारी सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या हम। हाँ, व्हाट अबाउट रियल टाइम प्रैक्टिस, अंकिता का ये बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो अंकिता, एडिशनल करिकुलम में हम क्या देने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा रियल टाइम प्रैक्टिस हम कैसे करवाते हैं। तो देखो, काफी दफा है ना आईटीआईएल ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है डेवॉप्स वगैरह पढ़ा तो लेते हैं, आईटीआईएल नहीं पढ़ाते यार। अब आईटीआईएल नहीं पढ़ाएंगे ना तो प्रोसेस ओरिएंटेड नॉलेज नहीं पता होगा कि टिकट कैसे आती है, टिकट पे क्या काम होता है, टिकट की सीवियरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, एसएलए किसको बोलते हैं। तो ये आईटीआईएल के ना, क्योंकि मैंने खुद एज ए इंसिडेंट मैनेजर काम किया है तो मेरे को इसकी इंपॉर्टेंट और वर्थ पता है। तो मैं आईटीआईएल के सेशंस भी लेने वाला हूँ आप लोग के। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, जब जेनकिंस के सेशन होंगे हमारे, पूरा 3 टियर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड, बैक एंड माइक्रो सर्विस और डेटाबेस पूरा डिप्लॉय करके बताने वाला हूँ। और वही प्रोजेक्ट, वो जो 2 प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं इन जेनकिंस, वही प्रोजेक्ट आपको बताने हैं। वो जो 2 प्रोजेक्ट है, अगर लगता होगा कि उसमें पे मैं चूरन डाल रहा हूँ, तो ये लो, ये रहे आपके वो 2 प्रोजेक्ट। प्रीवियस बैच का, अभी एक बैच का मैंने कल ही लिया ये सेशन। ये एप्लीकेशन हम लोग जावा का 3 टियर एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करने वाले विद जेनकिंस, और ये एप्लीकेशन जो है आर्गो सीडी से डिप्लॉय करने वाले। तो यही 2 प्रोजेक्ट आपको इंटरव्यूअर को बताने हैं जब भी पूछेगा। अंडरस्टूड नाउ? करियर प्रिपरेशन, रियल टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन, फाइनल प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेशन। सो आई विल बी शेयरिंग अ कपल ऑफ, मतलब है ना, बंच ऑफ लिंक्स आप लोगों को, जो आप रेज्यूम पे सर ये डालोगे। फाइनल प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेशन लिखा है, ये कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं क्या आप लोग? फ्री वाला सर्टिफिकेशन डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट अगर ग्लोबल वाले सर्टिफिकेशन में आपको हेल्प चाहिए, आप अपियर करना चाहते हो, तो उसमें मैं आपको उसमें भी ट्रेन कर सकता हूँ। आई कैन बट हेल्प ये यू। बट ये बट ये मैंडेटरी है क्या जॉब कैप्चर करने के लिए? सर्टिफिकेशन कोई होना जरूरी है क्या डेवऑप्स का, मैं बोलूंगा मतलब डेवऑप्स? मैं बोलूंगा मेरे पास में एक भी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस नहीं है, सारे फ्री वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी रिसेंट में ना मेरे प्रोजेक्ट में एक बंदा लाया था, इन लोगों ने एडब्ल्यूएस से लाया था, उसके पास में 3 सर्टिफिकेशन है एडब्ल्यूएस के। तुमको पता है, उसको अच्छा, 2 महीने में निकाल दिया। एक ओके। कहावत तुम लोगों ने सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। सर्टिफाइड तो था वो, क्योंकि एडब्ल्यूएस ने उसको कॉस्ट दे दिया, फ्री में सर्टिफिकेशन। थियरी रट्टा ज्ञान ना, रट्टा ज्ञान वो साइलेंसर वाला रट्टा हाँ ज्ञान हाँ, पकड़ के सर्टिफिकेशन करके वो इधर तक आ तो गया। इंडस्ट्री में वैल्यू उन लोगों की है जिनको प्रैक्टिकली कंसेप्ट पता होती है। सी थियरी कहीं ना कहीं ओके। इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, अंदर काम करने के लिए तुमको क्या चीज आनी चाहिए? प्रैक्टिकल। तो बस ये लो, प्रैक्टिकल। ये सारे प्रैक्टिकल अपने यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हम लोग ना प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बट ना तुम्हारा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है। तो आई विल बी शेयरिंग यू अ कपल ऑफ लिंक्स, जहाँ से आप जाके फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हो, रेज्यूम पे डाल सकते हो, जिससे आपके रेज्यूम की वैल्यू ऐड बनेगी और आपको इंटरव्यू कॉल्स शॉर्टलिस्ट होके आएंगे। ग्लोबल सर्टिफिकेशन वो 30-40 हजार वाले, वो मैं खुद नहीं करता हूँ, तो आप लोगों को कैसे रिकमेंड करूँ? अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए। क्या बोलते हो? परफेक्ट, परफेक्ट। Will one get job reference apart from नौकरी? Yes, that's why I'm asking for practicals. Yes, अंकिता, मतलब हमारा मेरा जो अप्रोच है ना पढ़ाने का, अगर आप देखोगे, अभी ये ब्रोचर में भी ना मेरे को थियरी एक्सप्लेन करने बहुत बोर लग रही है, बट आप लोग के क्वेश्चन है तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ रहा है। हर चीज ना मेरे को डेटा और प्रैक्टिकली प्रूव करके बताने में मजा आता है। और ऐसे ही पढ़ने वाले हम पूरा डेवॉप्स स्क्रैच से पूरा। तो जो आपके क्वेश्चन है ना रेफरेंस वाला, तो ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन भी आपका मैं क्लियर कर लेता हूँ। हमारा और एक ना बहुत तगड़ा एक फीचर है जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फॉर रियल टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन। अंकिता, आपका ही क्वेश्चन था शायद ये, राइट? तो ना हम लोग ना 4 लेवल के 5 लेवल के मॉक अरेंज करेंगे इसमें, जिसमें ना जैसे ही आपका कोर्स हो जाएगा, प्रिपरेशन आपकी होगी। पहला होगा आपका एचआर राउंड, फिर होगा आपका टेक्निकल राउंड, फिर होगा आपका मैनेजरियल डायरेक्टरियल या क्लाइंट राउंड, फिर आपको मिलेगा फीडबैक, और आपको जो भी मेंटर रहेगा आपका, जो भी मैं एलोकेट करके दूंगा, वो आपको रिसोर्स शेयर करेगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है आपका? मान लो, लेट्स से कि कोई कंपनी का ना विप्रो में आपका इंटरव्यू शेड्यूल है बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर।
हमारे पास ना बंदे हैं जो विप्रो में काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको अलाइन करूंगा आपका डेवऑप्स का जो मॉक है ना। एचआर तो नॉर्मल कोई भी ले लेगा, कोई भी एक एचआर अपने टीम में से ले लेगा। पहले आपका ना टेक्निकल राउंड होगा, और इनफैक्ट ना ये टेक्निकल के बाद में ना मैनेजरियल भी राउंड होगा, जो कि टेक्नो मैनेजरियल रहेगा। तो ये कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एचआर होता है, दो टेक्निकल होते हैं, उसके बाद में मैनेजरियल या तो होता है, या तो डायरेक्टरियल राउंड होता है, या तो क्लाइंट राउंड होता है। तो इससे क्या होगा आपको पता है, इसमें हेल्प कैसे करेगा, ये जो बंदे हैं ना, ये जो बंदे अपने जो मॉक आपके लेने वाले हैं, ये ऑलरेडी है ना 18-18 15-15 20-20 लाख के पैकेज पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये लोग ना आपका रियल टाइम इंटरव्यू मॉक का जो है ना इतना डिफिकल्ट लेने वाले हैं कि वो जो आपको रियल टाइम का इंटरव्यू है ना, ये लगेगा पीस ऑफ केक इसके सामने। या अगर आपने मॉक के इंटरव्यू क्लियर कर दिया ना हमारे, ये रियल टाइम इंटरव्यूज वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। लेट मी टेल यू व्हाई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये चारों मॉक में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे गए, और वो 20 में से अगर 10 क्वेश्चन आपको ये रियल टाइम इंटरव्यू में पूछे गए, और मान लो आपको जॉब लगती है 10 लाख की, तो एक क्वेश्चन कितने लाख का हुआ? चलो वापस से पूछता हूँ। 1 लाख का। परफेक्ट। तो ये एक मॉक को है लाख ना, का। मैं सच बता रहा हूँ, अगर पूरा कोर्स 50% इंपॉर्टेंट है ना, तो ये मॉक बाकी का 50% इंपॉर्टेंट है। पूरी जो आपकी रियल टाइम प्रिपरेशन है ना, ये मॉक से प्रिपेयर होने वाली है। कैसे होने वाली है बताओ, डेटा ओरिएंटेड प्रूफ दो। अगेन आपको लग रहा होगा कि मैं वही चूरन डाल रहा हूँ, तो देखो एक बंदा है, रिसेंटली कोई प्लेस हुआ है क्या? रिसेंटली प्लेस हुआ है, उसका अगर ऑफर वगैरह देखना है तो आप उधर जा सकते हो एडमिन टीम के पास। तो देखो, इसको मैंने बोला था लास्ट बैच का मेरा टेराफॉर्म का, मेरे पास में टाइम नहीं था क्योंकि दो बैच एक साथ चल रही थी, तो आई आस्क्ड हिम टू टेक टेराफॉर्म के सेशंस। ही इज वर्किंग इन वोडाफोन बाय द वे। अभी मैं इसको ना बताता हूँ कि मॉक्स के टाइम पे आपके यूजुअली ना कैसे होते हैं, फीडबैक कैसा मिलता है, और हम लोग कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। लेट मी शो यू दैट। वेब वर्जन वाले में यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये देखो, एक बंदा है अभी मेरा प्रीवियस बैच का, मैंने उसको बोला था थैंक्स फॉर कंडक्टिंग द मॉक, ये फरवरी का डेटा है, व्हाट्स द फीडबैक फ्रॉम योर साइड। बोल रहा है ही इज प्रेटी गुड, है ना, टेक्निकली ही लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर आइडियाज विच इज कंटेनराइजेशन, एचडीएलसी और क्लाउड। टू हेल्प हिम, मैंने इसके साथ में रिसोर्सेज शेयर किया है, और नीड टू स्पेंड टाइम, ऐसे मेरे को फीडबैक मिलता है। तो जब तक मेरे को ये मेंटर से फीडबैक नहीं मिलेगा ना कि इज गुड टू गो, ही इज गुड टू गो टू फर्दर राउंड रियल टाइम इंटरव्यू, अभी वो दे सकता है, आई विल नॉट अलाउ यू टू गिव द रियल टाइम इंटरव्यूज। यू नो व्हाई? क्योंकि ना कॉल्स तो आपको आ जाएंगे। अब मान लो विप्रो में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, बट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल नॉलेज कम होने की वजह से ना ये इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हुआ। तो ना ये ऑर्गेनाइजेशन की ना एक बफर, एक कूलिंग पॉलिसी होती है, राइट? आपको पता होगा शायद ना, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो सेम कंपनी में आप 6 महीने तक वापस इंटरव्यू नहीं दे सकते हो हाँ। दैट वे। तो मैं नहीं चाहता कि एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ चांस फॉर यू, और चांस अपने को मिस करना है क्या? तो ये डेवॉप्स का जो मॉक हमने इतना डिफिकल्ट रखा है ना, क्यों रखा है? ताकि आपको रियल टाइम इंटरव्यू ना इजी जाए, इसकी वजह से क्या जाए, इजी। और इसमें ना कोई लिमिट नहीं है। जब तक अभी मान लो अगर आपने एचआर राउंड दिया, टेक्निकल में आप फेल हो गए, टेक्निकल में आप क्लियर नहीं कर पाए, जब तक आप पास नहीं करोगे ना, अलग अलग मेंटर्स को आपको टेक्निकल राउंड देते रहना है। तो द मोर मॉक्स यू गिव, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास जमा होंगे। और ये ऐसे ही बंदे हैं, देखो ऐसे ही बंदे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी रियल टाइम में आपको पूछे जाएंगे। दूसरी चीज किसी ने बोली, देखो ये शेयरवेल, सर्विस नाउ, ये टिकटिंग टूल्स पे हम पढ़ाने वाले। दूसरी चीज किसी ने मेरे को बोली जो सबसे बेस्ट है अपने पास में, लेकिन उसके पहले इस पे देखते हैं करियर प्रिपरेशन। तो जैसे ही आपका L1 L2 L3 L4 का मॉक क्लियर हो जाएगा ना, आई डू टेक पर्सनली ना रेज्यूम बिल्डिंग के, प्रोफाइल क्रिएशन के सेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस में भी लेता हूँ, पेड सेशंस लेता हूँ मैं। तो आई विल इंश्योर कि आई विल पर्सनली कनेक्ट विथ यू इंडिविजुअली, 1-to-1 हम कॉल पे जाएंगे। आपकी एक्सपर्टीज, आपको जो टूल में आप मास्टर हो उस हिसाब से मैं आपका पर्सनली रेज्यूम बनाऊंगा, उस हिसाब से पर्सनली आपका प्रोफाइल बनाऊंगा नौकरी पे, लिंक्डइन पे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स मिले। और सर्टिफिकेशंस की लिंक भी दूंगा। नाउ द वेरी बेस्ट फीचर्स विच वी हैव इज द रेफरेंस, विच इज ब्रिंग योर ओन बडी। अब ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बंदा आपका मॉक ले रहा है ना, अगर आप टेक्निकल साउंड कर रहे हो ना, तो ज्यादातर केस में आपको कहीं अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो बंदा खुद आपको ना रेफर कर देता है। लेट मी टेल यू हाउ। अब एक रिसेंट का डेटा बताता हूँ।
कल या परसों ही किसी से मेरी बात हुई है कॉल पे. वन ऑफ माय मेंटर रेफर्ड हिम इन माय ऑर्गेनाइजेशन. ये देखो कब का डेटा है, ये फ्राइडे का डेटा है. ये बंदे ने मुझे बोला कि वन ऑफ द मेंटर गिव योर नंबर, आई हैव इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे विथ योर कंपनी. मैंने बोला ठीक है, इंटरव्यूअर का नाम बता. आई हैड अ कनेक्ट विथ हिम ऑन द कॉल. इसके मार्क्स क्लियर हो गए बाय द वे. ठीक है, उसने बोला ये ले रही है इंटरव्यू. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने देखो जो जो मेरे कंपनी में कंपनी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो शेयर कर दिए. अब ऐसे ना देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जहाँ पे अपने बंदे काम करते हैं. अभी जैसे मेरे को मेरे कंपनी में पता है क्या पूछते हैं, मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया. मान लो आपका इंटरव्यू होता है स्केड्यूल विप्रो में, मान लो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है कैप जेमिनी में. यहाँ पे ऑलरेडी अपने बंदे काम कर रहे हुए हैं, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कंपनी में ये प्रोफाइल के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो कंपनी में जाने से पहले ही कंपनी के क्वेश्चंस आपके पास में होंगे. दूसरी चीज, हो सकता है अभी मान लो अपने पास में 30 बंदे हैं, 2 बंदे हैं जिनका सेम टाइम पे ना विप्रो में इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है. मान लो अपने पास में अरुण है जिसका इंटरव्यू 3 बजे है, और मान लो अपने पास में दूसरा बंदा है लेट्स से आमिर या लीना शिंदे, इसका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है 6 PM को. तो कोऑर्डिनेट कैसे करना है आपस में. जो 3 बजे जो बंदे ने इंटरव्यू दिया है ना, अब सेम प्रोफाइल है तो मोस्टली क्वेश्चन सेम ही पूछे जाएंगे 6 बजे वाले बंदे को भी. तो ना आपस में कोऑर्डिनेट करना है. और बहुत बार ऐसे होता है कि 3 बजे वाला बंदा है ना, अगर उसका इंटरव्यू खराब गया, वो क्वेश्चन शेयर करता है 6 बजे वाले बंदे को. 6 बजे वाला बंदा वो इंटरव्यू क्लियर क्रैक करके ऑफर लेटर लेके आ जाता है अपने पास. क्लियर. सो दैट्स आवर रेफरल गेम वर्क्स. देखो मैं डेटा ओरिएंटेड प्रूफ बता रहा हूँ यार. नोबडी शेयर्स दिस बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल डेटा. और आई वुड रिकमेंड कि आप भी इसको आगे कहीं शेयर मत करो, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है. बट होता है, आई नो देर आर ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि लोग ना बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बैठे हैं, काफी लोगों का लोगों ने पैसा डुबाया है ये चीज में. तो आई नो देर आर कंसर्न्स. अगर आपकी जगह शायद मैं होता तो मैं भी यही करता. सो एवरीबडी अंडरस्टूड क्या है क्या नहीं. नाउ लेट अस बिगिन द Q&A सेशन. अब बिंदास पूछो क्या डाउट्स है, क्या क्वेश्चन है, करिकुलम को लेके, कोर्स को लेके. डू आस्क. The minimum what is a CTC get people like who started their career? सो लेट मी टेल यू फॉर दैट. एक 3 साल के बंदे को आपने कितना, 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को आपने कितना पैकेज लेते हुए सुना है? जेन्युइनली बताओ हाँ मुझे. 3 साल एक्सपीरियंस के कितना? 6 लाख. थोड़ा और Yes. ज्यादा सोचो यार. डेवऑप्स में मैंने Up to 20 10 18 LPA. lakhs 20 और 18 lakhs तक सुना है 3 साल की. हाँ, तो अरुण बड़ा सोचने वाला बंदा है ना. एक बंदा है, he managed to take 26 लाख का ऑफर ऑन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. और दैट टू ना वो बंदे ने पढ़ाई करके स्विच किया था डेवऑप्स. he had experience नहीं, in 2 different domains. वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है. आई विप्रो का ऑफर था 20 lakhs का, बट मैं क्रैक नहीं किया. वो कुबरनेटिस का प्रैक्टिकल सेशन में मुझे फंसाया गया. मतलब जो इंटरव्यूअर था ना उसने, और मैं खुद तो कुबरनेटिस पे काम नहीं विप्रो किया था. दोस्त, हाँ विप्रो वाले विप्रो. तो मेरे को एज अ क्यूबरनेट्स आर्किटेक्ट ले रहे थे, पता है तुमको? हाँ डेढ़ वही साल तो. पहले, हाँ 1.5 साल हाँ पहले की सेम. बात बता रहा हूँ. मैं भी 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि सेम प्रोफाइल कुबरनेटिस आर्किटेक्चर करके. बट मैंने किया था थ्योरेटिकली और कुछ प्रैक्टिकल भी किया था. बट आई एम नॉट वर्कड ऑन कुबरनेटिस प्रैक्टिकली. So that's the reason I filled out that kind of interview. But the package is 20 lakhs for that kind अरे of मुझे position. मुझे मुझे हायर कर दिया था. देवर रिलीजिंग द ऑफर. मैंने मना कर दिया उनको. पता है क्यों? बिकॉज वो लोग बोल रहे थे मेरे को बैंगलोर आओ. अभी मैं बताता हूँ, वो जो 26 लाख का ऑफर लिया ना 3 साल के एक्सपीरियंस पे, वो बंदा मैं हूँ. सो आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड इट वॉज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. सो दे टुक माई 6 राउंड्स. यू विल नॉट बिलीव, 4 लोग मिलके तो मेरा HR राउंड ले रहे थे लास्ट में पैनल में. एंड मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट HR राउंड है. HR राउंड को तो मैं वैल्यू भी नहीं देता हूँ ऐसे ही. 4 लोग मिलके पैनल में मेरा HR राउंड ले रहे हैं फॉर 2 hours. एंड दे वर लाइक कन्विंस अस कि व्हाई यू डिजर्व एंड व्हाई आर यू आस्किंग 20 लाख. तेरे को तो साले 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा तो बजट भी नहीं है. एंड दे आर टेकिंग माई इंटरव्यू ऑन क्लाउड, दे आर टेकिंग माई इंटरव्यू ऑन बिग डेटा, दे आर टेकिंग माई इंटरव्यू ऑन डेवऑप्स. देन वो 2 घंटे में मैंने उनको समझाया कि व्हाई डू आई डिजर्व टेकिंग 26 LPA एंड मैं क्यों डिजर्व करता हूँ, और मैंने कैसे कन्विंस किया उनको कॉन्फिडेंटली. तो कई दफा ना कॉन्फिडेंटली बोलने वाला भी चाहिए. तो इसलिए वाई आई एम इंसिस्टिंग यू टू स्पीक अप, क्योंकि जो बोलोगे ना तभी चलोगे मार्केट में, नहीं बोलोगे तो नहीं चलोगे. बट
हाँ उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड सैलरी डिस्कशन कब होता है अरुण? इट इज ड्यूरिंग द लास्ट, जब आपके टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला काम अपने को कहाँ पे करना है? टेक्निकल में अपने को एक्सपर्ट बनना है। बाकी एचआर, कम्युनिकेशन, जार्गन्स, बोल बच्चन, ये तो थ्रू आउट द कोर्स में सिखा दूंगा आपको, राइट? तो इंडस्ट्री में ना हाईएस्ट पेइंग जॉब्स पैकेजेस मिलते हैं। वो बोलते हैं ना झुक, क्या बोलते हैं, एक कहावत है यार वो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बस वो झुकाने वाले बन जाओ। क्या बोलते हो? तो गाइज एनी क्वेश्चंस? क्यूएनए है अभी, बिंदास दिल खोल के पूछो, कुछ भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, डेवऑप्स से रिलेटेड, डू आस्क मी। क्लास का कोर्स ड्यूरेशन मतलब कितना होना है? देखो आप चाहते हो, अगर आप रेडी हो तो मैं तो साल भर पढ़ा सकता हूँ यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम क्या, हम कोशिश क्या करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग देखो, क्योंकि क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ अगर 2 महीने क्यूबरनेट्स चलने वाला है, क्योंकि वीकेंड की बैच है, उसके पहले लिनक्स रहेगा, क्लाउड रहेगा, उसके बाद में टेराफॉर्म है, एज्योर है, इट विल टेक हार्डली 5 to 6 मिनट्स पूरी बैच खत्म करने के लिए। अब उसके बाद में जब आपके मॉक चालू होते हैं ना, मुझे नहीं पता राइट इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी कितनी है। हो सकता है कि आप मॉक 1 महीने में भी क्लियर कर सकते हो, या हो सकता है आपको मॉक को 4-5 महीना भी लगे। तो द मोर टाइम यू गिव, द मोर टाइम यू नो पैशनेटली आप अगर लर्निंग करते हो, जल्दी मॉक क्लियर करते हो, विल टेक द जॉब एसएप, जल्द से जल्द आप सर जॉब ले लाइव लो। प्रोजेक्ट पे मिलेगा क्या प्रैक्टिकल के लिए? मैंने प्रैक्टिकली अभी तुमको गिटअप का रेपोजिटरी का लिंक शेयर करके भी बताया, राइट? तो जो इंडस्ट्री में मैं मेरे प्रोजेक्ट में जेनकिंस की पाइपलाइन लिखता था ना 2-3 प्रोजेक्ट पहले, मैं वो पाइपलाइन तुमको लिख के बताने वाला हूँ। अरे सर एक प्रोडक्शन क्वेश्चन था ग्रेड नॉलेज अभी। चलेगा उसमें। अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि वीकेंड में बैचेस होगी, वीकेंड में कितने आवर्स की होंगी, और ये वीकडेज में कोई होगा क्या, मतलब वीकडेज या में कुछ खाली सपोर्ट वीकेंड? होगा क्या? देखो अभी का जो हमारा, हमने थोड़ा ना ये बैच से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया। वीकडे में क्या होगा, क्योंकि लास्ट बैच में ना लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो सैटरडे संडे में सेशन लेने वाला हो ना, उसके बेस पे हाँ ना हमारी जो दूसरी टेक टीम है ना, वो क्या करेगी, पीओसी और पीओएल बनाएगी। पीओसी यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीओएल यानी कि प्रूफ ऑफ लर्निंग। तो जो सेशन में समझ लो, आज का जो सेशन ले रहा हूँ, मान लो आज मैंने डॉकर लिया, डॉकर के ऊपर जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, इसका एक ना पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के ये लोग आपको देखें, आप लोगों को वो एग्जाम देनी है। क्यों मालूम है? इससे आपको ना इंटरव्यू जल्दी क्लियर करने के लिए फेयर इनफ आइडिया मिलेगा, और हमको पता चलेगा कि किसको कितना नॉलेज और कितना समझ में आ रहा है। दूसरी बात, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको सबमिट करना है, यानी कि आपको स्क्रीनशॉट सबमिट करने के, आप जो भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तीसरी चीज, वीकडेज में है ना, जो दूसरे टेक्निकल बंदे हमारे मेंटर्स, वो लोग आपके लैब सेशंस लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ना बेसिक डाउट्स होते हैं, किसी का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, किसी का प्रैक्टिकल ठीक से नहीं चलता है। तो हर दिन हाँ ना वही तो। ड्यूरिंग इवनिंग टाइम आपके लैब सेशंस कंडक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे क्या होगा, अच्छा मतलब वो मतलब। लिंक, मतलब वो जो लिंक है ना, रिदम जो है ना, वो रिदम ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, सैटरडे संडे में आऊंगा, फिर वीक का गैप हो जाएगा पूरा, तो रिदम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, डेली ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम इन वीकडेज आपका लैब सेशंस कंडक्ट होने वाला है। ओके। प्रैक्टिकल्स कितने ठीक से घंटे होना का चाहिए। सेशन होगा सर? तो देखो डिपेंड वीकेंड। करता है, मेरे जो बड़े बड़े सेशन है क्यूबरनेट्स के, जेनकिंस के, दैट टेक्स अराउंड 3 आवर्स, 2.5 आवर्स। बट नॉर्मली आपका जो सेशन रहेगा वो मैं ना बोर करने में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग रिमोटली बैठे हैं, वैसे ही हाँ नींद आती रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम्युनिकेटिव सेशन रहे, इंटरेक्टिव सेशन रहे, है ना, मजा आए अपने को भी पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं कि आ रहे हैं, थ्योरी का ज्ञान चिपका रहे हैं और चले जा रहे हैं। लोगों को मजा आनी चाहिए। उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो, समझ आना चाहिए। समझ के पढ़ोगे ना, कंसेप्चुअली पढ़ोगे, तो कभी भूलोगे नहीं वो चीज, राइट? सुमित बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल ठीक से होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल ठीक से नहीं हुआ तो आप क्या करोगे बताओ? तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल अटेंड करके देखना पड़ेगा दोस्त। और ये मेरी गारंटी है, आप अगर सेटिस्फाई नहीं हुए ना प्रैक्टिकल से, तो मुझे बोल देना दोस्त, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है यार, है ना, द वे आई टीच। आप उससे प्रीवियस बैच के एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर सकते हो फीडबैक लेने के लिए क्लाउड वर्ल्ड का। यू कैन गो एंड कनेक्ट टू द एडमिन टीम, दे विल, आप मतलब क्या बंदे भी अरेंज कर आते हैं सकते हैं क्या, मतलब एल्यूमिनेट्स का कुछ सेशन है? एल्यूमिनाइज का। हाँ अगर गेस्ट सेशन चाहिए तो नेक्स्ट बैच के ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन में एक एल्यूमिनाई को बुलाता हूँ, आप उससे फीडबैक ले लो। अगर वैसे गलत लग रहा है तो आप क्लास में जाओ, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो डायरेक्टली जब चाहो तब। मतलब अपने को वो टेंशन नहीं है यार।
ये यहाँ पे कुछ वो वाला बिजनेस नहीं चल रहा है, मतलब ना लोग जो इंस्टीट्यूशन में नॉर्मली चलाते हैं वैसे। सर इफ वी हैव एनी डाउट हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या यार? मैं तो आप लोगों के लिए 24/7 वैसे अवेलेबल हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव बहुत सारी दूसरी कमिटमेंट्स होती है। तो आकांक्षा आप क्या कर सकते हो, आप एडमिन टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट है एडमिन टीम विल रीच आउट टू मी एंड हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बट मैं ऐसे अनरिस्पॉन्सिव बंदा नहीं हूँ, मैं हमेशा आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू माई कैंडिडेट्स, राइट? व्हाट एल्स? कुछ और पूछो यार, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछो यार। आई लाइक सर द आपने पीपल हु आपका चैलेंज मी। सर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, नहीं क्या? यार वो हमें क्या है नहीं ना, पता वो क्या है ना, सब एक साथ में बता दूंगा तो फिर आगे मजा नहीं आएगा ना, और मुझे पता है तुम लोग इतने शहाने हो ना, आगे सब कुछ मेरे से उगलवाल होगे तुम लोग, तो आगे नहीं और नहीं, ऐसा नहीं इंटरेक्शन सर, लेकिन और नहीं आगे ना ऐसा देखो क्या होता है नहीं ना, आप इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सो सी आई गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस मोर देन 6 years now. I have been working in MNCs. I have been working in startup. Currently, I'm working for a mid-scale based organization where I have been handling 3 projects simultaneously. Apart from that, it's been more than 1.5 years now. I've been training individual, mentoring people into DevOps. And apart from that, I do contribute into freelancing projects as well. And I have, vast exposure into infra support, application support, incident management, big data, DevOps. तो मेरे को ना ये सारी चीज़ों का एक मतलब कैसे जारगन डालना है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, कैसे कौन से आंसर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ गया हूँ मैं इंडस्ट्री का गेम। दैट इज द रीजन आर कैंडिडेट्स गेट प्लेस्ड ऑन टू अप CTCs like 12 lakh, 15 lakh in the fucking age of 25-26। तो महेश बोल रहे हैं कि ही इज MBA 2016 पास आउट, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बढ़िया है, ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है महेश। 2016 से या 2017 से एक्सपीरियंस लेवरेज करके आप शोकेस कर सकते हो, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा CTC, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा टेक्निकल साउंड करना पड़ेगा इंटरव्यू में। आपके पास में महेश प्लस पॉइंट है इनफैक्ट, और ये चीज़ हम लोग ये फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप एडमिन टीम को कनेक्ट कर लो, दे मेक यू अंडरस्टैंड। करेक्ट करेक्ट अंकिता, ऑफ कोर्स, बट सर नॉलेज भी तो चाहिए। विथ नॉलेज कम्स मनी माय डियर फ्रेंड, विथ एक्सपर्टीज कम्स मनी। पहले ना पैसे के पीछे मत भागो। वो एक 3 Idiots में डायलॉग है, पता है कुछ तो बोलता है यार वो, सक्सेस के पीछे मत भागो, फॉलो एक्सीलेंट, है ना, एक्सीलेंस का पीछा करो। सिमिलरली यहाँ पे भी ना जक मार के, तो यहाँ पे ना डेवऑप्स के पीछे भागो, पैसा जक मार के पीछे आएगा। सर सुनो ना, एक क्वेश्चन था मेरा। अभी जो बिल्कुल बोल रहे बोलो हैं ना भाई। आप कि आप जो बोल रहे हैं ना सर कि मतलब एक्सपीरियंस का अभी मान लो तो अभी 2016 पास आउट है सपोज कोई, तो नहीं क्या, और अभी वो एक्सपीरियंस जोड़ेंगे जब इंटरव्यू को जाएंगे तो उतना डीप भी जाएंगे ना, और इतना डीप प्रैक्टिकली सेशन होंगे क्या हमारे, उतना डीप एंड तो आयु ना तो ना यही मिसकंसेप्शन होता है लोगों का। क्या होता है ना, एक और साल के बंदे प्रैक्टिकली को ना, वो तो ऐसा पूछेंगे कि इसको सब कुछ आता है, मतलब वो टॉप का आता है, इसको ऐसा ही पूछेंगे ना वो लोग। देखो वो तो ये तो चाहे आप 1 साल का एक्सपीरियंस बताओ या 10 साल का एक्सपीरियंस बताओ, इंटरव्यूअर हाँ है ना, इंटरव्यूअर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन होता है। तो ये जो करिकुलम जो प्रैक्टिकल डिजाइन ही ऐसे हुआ है ताकि मतलब एज अ फ्रेशर आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए, या 10 साल एक्सपीरियंस बता के जाओ, दोनों बंदे अपने आंसरेबल रहेंगे वहाँ पे, दोनों बंदों को आंसर करने आना चाहिए वहाँ पे, और आंसर करेंगे वो। ये कंटेंट ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि देखो डिमांड में आप जब जाते हो सकता है कि आप जा रहे हो राइस लेने के लिए, आप जा रहे हो ग्रोसरी लेने के लिए, हो सकता है देर आर n नंबर ऑफ पीपल देयर कमिंग देयर टू बाय डिफरेंट स्टफ्स, लाइक कोई जा रहा है क्लोथ्स लेने के लिए, कोई जा रहा है कुकीज लेने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्लाइंट आया है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको जेनकिंस पे ज्यादा अच्छा तगड़ा इंटरव्यू लेना है, क्योंकि CI/CD पे ज्यादा काम है उसका। अच्छा, दूसरी चीज ना, इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर टू वर्क ऑन ऑल दीज टूल्स एट वन शॉट, एक्सेप्ट बहुत अगर तुम लकी हो, स्टार्टअप अगर कंपनी तुमने ज्वाइन कर ली तो मिल जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इसके 10% टूल पे भी काम नहीं मिलता है। हाँ, इंटरव्यू लेते हैं शाने लोग सब पे, काम अंदर के 10% टूल पे भी नहीं देंगे। अपने को क्या बनना है, पता है अपने को, डीमार्ट जैसे बनना है क्या, कोई भी बंदा आवे, जो भी टूल उसको चाहिए वो टूल अपने को आना चाहिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूछे,
और अपने को हायर कर ले, सिंपल। तो ऋत्विक का एक क्वेश्चन है, आई एम अ 2020 पास आउट वर्किंग एज एन एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सैलरी और नेक्स्ट जॉब सैलरी? बिल्कुल नहीं यार। सो ऋत्विक, लेट मी टेल यू, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ सपोर्ट इंजीनियर इन टेक महिंद्रा एंड आई रियलाइज्ड कि सपोर्ट इंजीनियर में मेरी दाल नहीं गलने वाली है, इसको इतना स्कोप नहीं है। अगर मेरे को ज़्यादा CTC चाहिए तो मेरे को वो स्किल सेट हिट करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है और जो हाईएस्ट पेइंग जॉब में से। देन आई रियलाइज्ड एंड स्विच्ड इनटू बिग डेटा, देन आई रियलाइज्ड एंड स्विच्ड इनटू डेवऑप्स, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, द वेरी फर्स्ट सैलरी आई गॉट राइट व्हेन आई जॉइंड टेक महिंद्रा वाज 8,000। आई जॉइंड ऑन अ पैकेज ऑफ 1.6, क्योंकि आपको तो पता होगा फ्रेशर्स को ये जो बड़ी बड़ी मास हायरिंग में कंपनी हायर करती है, BTech वालों को तो एटलीस्ट 3-4 लाख दे देते हैं, अपने को तो साला हम लोग BCS वालों को तो वो 1-1.5 लाख का पैकेज देते थे। और वो 1-1.5 लाख से मैं लिटरली, यू विल नॉट इमेजिन गाइस कि एक टाइम था व्हेन आई वाज लीविंग टेक महिंद्रा, हार्डली आई यूज्ड टू गेट माय CTC अराउंड 30 या 35,000 पर मंथ, है ना उस टाइम पे। नाउ टाइम ऐसा बदला है कि उससे कहीं ज़्यादा मेरा टैक्स कटता है। कैन यू बिलीव इट? सो इफ अ एवरेज पर्सन लाइक मी कैन डू इट, तुम लोगों को तो सच में टेक्निकल नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे जब मैं था उस फेज में। सो यू गाइज आर रियली वेल, यू गाइज आर रियली कम्युनिकेटिव, इंटरेक्टिव हो, तो कर सकते हो, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। देखो हमने ना कॉलेजेस में वी हैव स्पेंट लैक्स, पेरेंट्स के हमने लाखों रुपए डाले थ्रू आउट 20 साल का आप एजुकेशन का खर्च पकड़ के चल लो अपने पेरेंट्स का, यू आर नॉट इवन एबल टू अर्न 20-25,000 फ्रॉम दैट एजुकेशन, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट। और जब हम कॉलेज में जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में लैक्स में फीस होती है, बट हम वहां पे ये क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, राइट, सब लोग कर रहे हो। तो इसलिए हमने वो अप्रोच ही बंद कर दिया कि भैया आओ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पीछे वालों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आई डोंट केयर एंड आई एम गोइंग। दैट इज नॉट द केस विद अस। So Akanksha is saying, I am 2020 pass out, having IT background, perfect, but currently working in non-IT since 1 year. तो मैंने आकांक्षा, अगर अभी स्क्रीन शेयर मैंने जब किया था तो आपने देखा होगा कि non-IT वाले बंदों को भी समझ में आता है। और इनफैक्ट ना, लेट मी टेल यू, मैंने देखा ये non-IT वाले बंदे है ना, ये जिद्दी बहुत होते हैं। IT टेक्निकल वाले बंदों से ज्यादा कीड़ा इनमें होता है, और यही वो बंदे हैं जो मेरे को 12 लाख 15 लाख का पैकेज लाके देते हैं लास्ट में। क्यों मालूम है? दीज गाइज आर सिंसियर, these guys are passionate about learning. IT वाले थोड़ा सा ना, हाँ चलो हमको टेक्निकल पता है, ये वो वाले भ्रम में जीते हैं एंड देन दे मिस इट। सो मेरे को तो ज्यादा करके ना non-IT वाले बंदे पसंद आते हैं आकांक्षा। सो आई होप यू आर वन ऑफ देम। आप भी एक अच्छा हाई पेइंग ऑफर मेरे को बाद में बता देना लेके, प्रूव मी रॉन्ग, राइट। परफेक्ट। Any other questions? Sir, I'm currently working in MNC company. So going forward, looking opportunity in MNC company only. So is it possible? Of course it is possible. MNCs से MNCs में जाना तो और ज्यादा इजी है। MNCs से MNCs में जाना और ज्यादा इजी है। क्यों पता है? MNC वालों का कल्चर पता होता है आपको, प्रोसेस पता होता है, वहाँ चीजें आप कोई पॉलिसी ना ऐसी ब्रीच नहीं कर सकते हो। तो उसको पता होता है कि इसने ना MNC ने इन लोगों को सब कुछ सिखा के भेजा है ना। तो एक MNC हमेशा दूसरे MNC वाले को बहुत आसानी से अप्रोच करती है फॉर द इंटरव्यू, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है, सारी पे स्लिप्स होती है, और टेक्निकल नॉलेज जितना उनको चाहिए होता है उतना होता है। हाँ MNCs में थोड़ा सीखने कम मिलता है, बट उसके लिए तो आप यू आर एट द राइट प्लेस माय फ्रेंड। Yes, actually the job security रहता है ना, तो इसलिए फिर मतलब like सोच नहीं रही देखो, एक ऑनेस्ट मेरा ब्रूटल फीडबैक लोगे ना तो मैं सच में बता रहा हूँ, अपनी प्रोफेशन में ना जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला, अपने को ना रेजोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। मेरे को एक बात बताओ, आपने अगर आपका एक खुद का बिजनेस चालू किया, आपने एम्प्लॉयज हायर किए, अगर वो एम्प्लॉयज आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, आपके काम का ही नहीं है, बैठा के आप उसको सैलरी दोगे क्या? दोगे भी तो कितना दिन दोगे? आप समझ रहे हो अपने जॉब में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? तो वैसा बंदा बनो जिसकी वजह से आप मतलब क्लाइंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्लाइंट का अगर फायदा होगा ना आपकी वजह से, पूरी पूरी कंपनी भी निकालने की कोशिश करेगी ना तो भी क्लाइंट बोलेगा मेरे को ये बंदा चाहिए। और जब क्लाइंट बोलते हैं नहीं कि मेरे को ये बंदा चाहिए, कंपनी आपको ना ऐसे हाथ पे रख के झेलेगी। बट वो बंदा बनने के लिए पहले अपने को क्या करना है, वो सपने देखना बहुत आसान है, बट वो बनने के लिए अपने को क्या करनी है, टेक्निकल लेयर पे अपने को हार्डवर्क करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज अपने में चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। वी शुड बी अ सोल्यूशन प्रोवाइडर टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो समझ लो आपका जॉब सिक्योर है। वो एटीट्यूड और वो नॉलेज है ना आप में, तो भैया आपको कोई नहीं निकाल सकता। बट
इफ यू आर जस्ट अनदर पर्सन, एन एवरेज पर्सन, फिर तो भाई जॉब की सिक्योरिटी जीरो है। आप लीना मुझे एक बात बताओ, जिंदगी का भरोसा है क्या किसी का? आपने पुणे का पॉश वाला इंसिडेंट तो सुना होगा, Hmm. बेचारे यू टर्न मार रहे थे एंड सडनली दे लॉस्ट देयर लाइफ, राइट? तो जिंदगी, Yes. लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। ये प्रैक्टिकल ना एक्सेप्ट कर लो, सिक्योरिटी जीरो है हाँ, बट अगर तुम में वो पोटेंशियल और कैपेबिलिटी आ जाती है ना जब, बस यू आर जस्ट पुश अवे। इफ एन एवरेज पर्सन, एक एक 1.5 लाख अर्न करने वाला बंदा महीने में, सॉरी साल में, आज उसका टैक्स ऑलमोस्ट उतना कटता है। अगर एक एवरेज पर्सन लाइक मी कैन डू इट, एंड देयर आर मेनी ऑफ पीपल, आई हैव ट्रेन्ड पीपल लीना who डिड नॉट इवन नो, लैपटॉप भी पहली बार चला रहे थे, और जब उन्होंने मेरे को जेनकिंस के इंग्रेस के प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट्स जब दिए ना ग्रुप पे, आई वाज लिटरली हैप्पी सीइंग दैट। अब सोचो कितने नॉन टेक बैकग्राउंड से वो होंगे कि दे डिड नॉट इवन नो हाउ टू यूज द लैपटॉप। ये प्रीवियस वाली बैच में एक बंदी थी पूनम करके, नाउ शी इज इनटू द मॉक फेज। तो ये होती है जर्नी। दिस इज हाउ यू ट्रेन, दिस इज हाउ यू लर्न, दिस इज हाउ यू ग्रो। अंडरस्टूड? Yes, understood, sir. Thank you. सो कृतिका का, नो वरीज, कृतिका का एक क्वेश्चन है, मेरा कुछ भी नहीं आईटी में, आई बी गोइंग टू गेट नॉलेज फ्रॉम जीरो। ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट वीक का सेशन अटेंड कर लो, आपको समझ जाएगा हम कितने स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले। दैट इज द रीजन इट इज टेकिंग मी 6 months, वरना मैं 2-3 महीने में डेवऑप्स पढ़ा के खत्म कर दूं। फिर आपको चलेगा वैसे? नहीं राइट, मेरे को पता है यार, आई हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑडियंस जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो आई विल डेफिनेटली टेक सेशंस दैट वे। और ये मैं नहीं बोलूंगा, जब आप सेशन अटेंड करोगे तो आप खुद से समझ जाओगे। अंडरस्टूड कृतिका? नो वरीज। अंकिता का एक क्वेश्चन है, कैन आई कंप्लीट दिस कोर्स इन 1 month विथ मॉक इंटरव्यूज? क्या बात है, ये तो भाई यू आर, फ्लैश ज्यादा देख लिया शायद आपने ना, फ्लैश की तरह तेज भाग रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, खाना है ना, खाना जब घर में हमारे खाना बनता है, आप खाना बनने के बाद खाते हो या बनने से पहले खाते हो? बनने से पहले कोई खाना खा सकता है क्या? ऑफ कोर्स। तो कोर्स खत्म होने के बाद ही आप मॉक दे सकते हो। हाँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं फास्ट कर सकता हूँ क्या, तो यार देखो, आई बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे को भी वीकेंड पे ही टाइम मिलता है सेशंस देने का। बट इफ यू गाइस स्टिल इंसिस्ट, अगर फ्राइडे को कोई फ्री हो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे लेके बैच जल्दी खत्म कर ले, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, है ना? बट एक महीने में, मुझे एक बात बताओ, आप इंडस्ट्री में उन लोगों को टक्कर देने वाले हो जो ऑलरेडी 3 साल 5 साल से बैठे हुए हैं डेवऑप्स में काम करते हुए। तो यू हैव टू, उन्होंने जो 5 साल में मेहनत की है, यू हैव टू वर्क हार्ड 6 months। उनकी 5 साल की मेहनत आपको 6 महीने में करनी है, तब जाके आप उनसे ज्यादा सीटीसी ले पाओगे। वो दिन में 8 घंटे दे रहे हैं, समझ लो आपको कितने घंटे देने हैं। बट मैं सही बता रहा हूँ, एक लॉजिकल प्रैक्टिकल कोई बंदा अगर दिन में 1 घंटा भी डेडिकेटेडली अपने दे दिया ना, इट इज इनफ। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन इट। क्योंकि हम उसको उतना इजी करके पढ़ने वाले हैं, उतने मजे से हम सीखने वाले हैं। हाँ, अगर अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, भेजे में ना घुसे, फिर तो भाई हर टास्क डिफिकल्ट लगता है। बट जो चीज समझ में आ जाए, इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस। अंडरस्टूड? एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? टेक्निकल क्वेश्चन, प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ भी हो बिंदास पूछो यार। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गिविंग आंसर्स। जितना मुझे पता है एटलीस्ट आई कैन ट्राई आंसरिंग दैट। और यही अपॉर्चुनिटी है, दिस इज योर फोरम, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, राइट? पूछो, एनी क्वेश्चंस? बैच का टाइमिंग सेम रहेगा क्या, लाइक 11 o'clock? आप बोलोगे तो मैं और सुबह भी ले लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली तो हमारा 10-11 के बीच में ही होगा, यस। मतलब हम लोग पोल रन करेंगे टाइमिंग के लिए, मेजोरिटी ऑफ द पीपल को जो टाइम कंफर्टेबल है हम वो टाइम कर लेंगे। सुमित, मुझे एक बात बताओ, 1 महीने में आपको कैसे आ गया मॉक वाला नॉलेज? अगर 1 महीना मेरे को डॉकर ही क्रिएट, डॉकर ही पढ़ाने के लिए, अगर क्लाउड लिनक्स और डॉकर पढ़ाने के लिए अगर मेरे को 1 महीना जाता है, और मैं आपको मॉक में प्रमोट करूं, एंड देन these guys will start asking you questions on ingress, kubernetes, how will you able to answer? टेल मी। बट अगर और जल्दी करना है, तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट तुमको बैच खत्म करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक अलग प्लान है। आप एडमिन टीम से कनेक्ट करो, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, राइट सुमित? आकांक्षा पूछ रही है इवनिंग में बैच है क्या? इवनिंग में तो यार कोई बैच फिलहाल है नहीं, क्योंकि मेरा इवनिंग में कभी कभी ना
शिफ्ट एक्सटेंड हो जाता है। तो आई डिड ट्राइड कंडक्टिंग अ बैच इन इवनिंग, बट वो फिर बहुत सारे सेशंस फिर मेरे को पोस्टपोन करने पड़ते थे, कैंसिल करने पड़ते थे, तो मज़ा नहीं आता था यार। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 1 महीने में मैं डेवॉप्स पढ़ा दूंगा आपको, बट देखो जब तक मैं पूरा पढ़ाऊँ नहीं, फिर आप मॉक में जाओगे, आप बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो उससे बेहतर है पूरा खाना बन जाने दो, प्लेट पे अपने सर्व हो जाने दो, फिर मजे से खाओ यार उसको, क्या दिक्कत है। अब इतना टाइम तो दे ही दिया है ना खुद को, गिव योर सेल्फ 5-6 months, वर्क हार्ड। Ankita is saying, but what if we grab theoretical knowledge because practicals will be at the end? ये तो सोने पे सुहागा है। I want you guys to do it. थियरी थोड़ा सा खुद का, दिस इज अ वेरी गुड थिंग अंकिता, बाय द वे सब लोगों ने ये करना चाहिए। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही लेके आओ सेशन में, तो मजा आएगी। क्यों मालूम है, जब आप लोग खुद से पढ़ के लेके आओगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे कि सर मैंने ये पढ़ा था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप क्या इसको बताओगे, अच्छा ये चीज़ हम सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी से चीज़ें जब पूछोगे, ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। नॉट जस्ट दैट कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा, मैं जो पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाऊंगा उतने में ही खुश होना है और चले जाना है। व्हाट डिड आई सेड इन द बिगनिंग, आई लाइक द पीपल हु चैलेंज मी, उसी में मज़ा आती है। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस, राइट। मंथली मॉकअप कुछ होने वाले हैं क्या, मतलब जब जितना सिलेबस है उतने भी कुछ क्वेश्चन है ऐसा? उसके लिए मैंने बोला ना पीओसी और पीओएल रहेगा, वो पीओएल आपको टेस्ट देना है हर सेशन के बाद, उसमें आपका काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा ना, और हमको भी समझ में आएगा कौन कितना पानी में है। और आपकी डेली तो जो क्या बोलते हैं यार, जो शाम में होने वाली है, मैंने क्या बोला था यार, मैं खुद भूल गया, बैच लैब सेशंस तो आपके होने ही है शाम में। तो वैसे ही मेरे को आप लोगों की रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी कि कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, या फिर सबको अपने अपने शाम के अपॉइंटमेंट्स है संडे के? नो क्वेश्चंस, वी आर गुड टू ड्रॉप। If you still have any questions, you can directly ask me in next session. You can reach out to admin team anytime. सर क्योंकि ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप आप करने वाले हैं ना क्रिएट, उसमें आप रहोगे ना, मतलब जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो पेस्ट आउट करेंगे, जो भी सपोर्ट लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा यार रहने की, बट आई हैव लाइक आई सेड ना, प्रीवियस बैच के भी बहुत से काम होते हैं यार, और यूजुअली मैं मतलब एक बार शिफ्ट में बैठ जाऊँ ना, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए व्हाट्सएप वगैरह चेक करना, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर। ओके, ठीक है, थैंक्स थैंक्स। ओके, और कुछ क्वेश्चन है गाइस, और वी आर गुड टू ड्रॉप? जो भी बैच के स्टूडेंट है उनका हम कुछ ग्रुप वगैरह बनाते हैं इंटरनल मॉकअप से ऐसा कुछ? हाँ डेफिनेटली, आप ग्रुप्स में एडेड रहोगे, वहाँ पे पूरी टीम रहेगी, आपको कुछ भी कंसर्न आएगा तो आप टीम को पोस्ट कर सकते हो उसमें। डेफिनेटली सारा ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जाएगा, डोंट वरी। और हर बैच की रिकॉर्डिंग आपको आपके ईमेल आईडी पे प्राइवेटली शेयर की जाएगी, तो आप एन नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, राइट। और ये का मतलब ये जो करिकुलम है सब कुछ, ये सिलेबस है, उसका पहले से आपके पास कोई वीडियोस वगैरह किए हैं क्या आपने, और वो बंच ऑफ वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं क्या, या वो तो ट्रेनिंग के बाद ही? वो तो एनरोलमेंट के बाद आप लाइव सीख लो ना, क्योंकि हर बैच में क्या होता है ना, अभी जैसे लास्ट बैच में मैंने गिटऑप्स नहीं लिया था, इस बैच में हाँ, गिटऑप्स डाल दिया। लास्ट बैच अच्छा, में एज्योर भी आई थिंक नहीं हुआ था, इस बैच में एज्योर डाल दिया। तो हर नई बैच में मार्केट में क्या नया चल रहा है उस हिसाब से हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो प्रीवियस ओके बैच का अगर ओके करोगे, दैट इज फॉर प्रीवियस स्टूडेंट, जो 6 महीने पहले मेरे को लगा कि आज अगर मैं ये टूल पढ़ाऊंगा तो 6 महीने बाद इनको इसमें जल्दी जॉब मिलेगी। तो वैसे चेंजेस करते रहते ओके हैं हम लोग हर बैच में ना। ओके, गॉट इट, थैंक्स। What else? If nothing else, I think we're good to wrap up. It was very nice talking to you guys, and I wish you all the best. Let's catch up in the next session. Have a good day, guys. Bye थैंक bye. यू। Same to you. ओके, Thank you. सेम टू Thank you, यू। sir.